Most respected Principal Professor Ashish Joshi sir, our very close colleague Dr. Brijesh Kumar Mishra ji, and dear students, it's our proud privilege to introduce today's eminent speaker, Professor A.K. Sharma sir. Professor Sharma sir is world-famed zoologist and very big signature and stalwart of the field. He was eminent professor in the Department of Zoology, University of Lucknow. Currently, he is retired from active university services, but still working with more enthusiasm in the larger interest of the society and country. He is deeply involved in Clean and Green India mission and rendering his active services towards biodiversity and nature conservation. He has 32 years teaching experience and about 40 years research experience. During his active university services, he published around 100 research papers, 2 books, and produced about 20 PhD. He successfully performed his duty to lead the Department of Zoology, University of Lucknow from 2010 to 2013. He was Director and Coordinator, Institute of Mass Communication in Science and Technology, University of Lucknow from 1996 to 2019. That is a long duration of 22 years. He was Controller of Examination for a period of 5 years and Dean College Development Council for a period of 2 years. Sir, I have so many pages about you to narrate that will take at least 1-2 hours, hence skipping them, sir. Professor Sharma has received so many awards and honor, including Shikshak Samman, Prerak Samman, विज्ञान रत्न पुरस्कार, पर्यावरण सम्मान, पर्यावरण श्री सम्मान. Besides, he has awarded at least 4 times Lifetime Achievement Award, including ABRF Prayagraj, Global Environment and Social Association New Delhi, Blue Planet Society, Society of Life Sciences Satna. Moreover, he is credited to organize huge number of seminars, symposia, workshop, skill development program and delivered around 100 invited lectures. और विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात यह है कि सर जितने बड़े जूलॉजिस्ट हैं उससे कहीं अच्छे व्यक्ति हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे किसी भी आग्रह को सर टालते नहीं हैं, हमेशा मानते हैं. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये पूरे राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद प्रयागराज के लिए बहुत ही गौरवशाली पल है जब सर हम लोगों के बीच में हैं एक अच्छे काज के लिए लेक्चर देने के लिए. तो सर अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि आप अपना लेक्चर आरंभ करें. प्रोफेसर ए.के. शर्मा सर. Very good evening to everyone, especially my heartfelt gratitude to principal of the college, Joshi ji, other faculty member, and Dr. A.K. Verma ji, and all the dear student of undergraduate and postgraduate classes. सबसे पहले तो मैं A.K. वर्मा जी का किन अल्फाजों में धन्यवाद ज्ञापित करूं कि एकेडमिक आउटरीच एक्टिविटीज में ये वेंचर ही नहीं एडवेंचर करते हैं. ये तो आज भी स्टूडेंट के बीच में मैंने कभी भी वर्मा जी को खाली नहीं बैठे देखा. तो मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बधाई इस एकेडमिक वेंचरिंग के लिए और मुझे भी इसमें साथ में जोड़ रखा है. ये बहुत बहुत धन्यवाद.
तो मैं मुखातिब होता हूँ अपनी ऑडियंस, मेरा संक्षिप्त परिचय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो मेरा इंटरेक्शन का टॉपिक है प्रोटोजोआ विद स्पेशल, मैं बिगनिंग में ही क्लियर कर दूं कि मेरा अपना जो स्टूडेंट से इंटरेक्शन का है, हमेशा जो टॉपिक है उसकी तो बात करेंगे ही करेंगे, जो किताब में लिखा है उससे आगे की बात होनी चाहिए। नया क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी उपयोगिता क्या है, खासकर आज चूंकि टॉपिक प्रोटोजोआ का है तो मैं प्रोटोजोआ की जर्नी, बेसिक इंफॉर्मेशन देते हुए नए डेवलपमेंट शेयर करूंगा, नई रिसर्च शेयर करूंगा, और उसके बाद प्रोटोजोआ का जो मेन टॉपिक एक और है रिप्रेजेंट, उसकी बात करूंगा। तो आइए मैं सबसे पहले अपनी बात को बताता हूं एक स्लाइड से। बच्चों, मैं हर स्टूडेंट्स को क्लास में बोलता हूं, तुम लोग के जहन में एक पहला सवाल आना चाहिए जब पढ़ने आए हो, 5 W's and 1 H, कोई भी चीज, चाहे वो ज़ूलॉजी का क्लास हो, बॉटनी का क्लास हो, कोई भी क्लास हो, यहां प्रोटोजोआ की बात हो रही तो आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, प्रोटोजोआ क्या है, कहां पाया जाता है, कैसे रहता है, कब ये पैरासिटिक हो जाता है, कैसे ये दिक्कत करता है, कैसे बचा जाए। तो जब आपके मन में इस तरह के प्रश्न क्लास में उठेंगे तो आप उस चीज को जानेंगे। तो लर्निंग के लिए मन में जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। आज का विषय प्रोटोजोआ है तो आपके मन में ये सवाल होने चाहिए। इन सवालों को मैं अपने अंदाज से आपसे शेयर करूंगा। प्रोटोजोआ क्या है? तो प्रोटोजोआ, अगर बच्चों ध्यान दें तो आज से बहुत साल पहले 1675 में एंथनी वॉन लीeuwenhoek ने एक छोटा सा हैंडमेड माइक्रोस्कोप में एक एनिमल देखा जिसको उसने टर्म दिया था एनिमल क्यूब। 1817 में गोल्ड फर्स्ट से टर्म यूज किया प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ वर्ड जो है ग्रीक वर्ड मिलकर बना है, प्रोटोन, zoon means animal, that means protozoans are the first animal came first on the earth। तो ये है प्रोटोजोआ के बारे में, लेकिन इसकी असली बात तो डोबेल ने कही आगे चल के 1911 में। तो बच्चों, एक सबसे मूल बात कहे, प्रोटोजोआ को समझना बहुत आसान है। सबने एक सेल देखी है, चाहे वो बॉटनी में या ज़ूलॉजी में। सेल में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ये होता है, वो होता है। तो एक सेल में जितनी चीजें पाई जाती हैं, एक प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म में भी वो सारी चीजें पाई जाती हैं। बस वो कुछ खास बातें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, उनको हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। बट टू अंडरस्टैंड प्रोटोजोआ इज वेरी इजी, बिकॉज प्रोटोजोआ इज जस्ट लाइक सेल बट इट इज मोर देन ए सिंगल सेल। आइए आप बात को आगे बढ़ें। प्रोटोजोआ, मैंने आपसे बताया डोबेल ने 1911 में प्रोटोजोन्स को टर्म यूज किया, ए सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। जो तुम मन में बात पूछे, आप ध्यान करके देखो, प्रोटोजोआ जो एक सेल का हुआ है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल का करता है स्ट्रक्चरली। लेकिन अगर हम फंक्शनली बात करें तो सिंगल सेल प्रोटोजोआ इज कंपेरेबल टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो चाहे एनिलिडा का हो, कोई भी हो। तो फंक्शनली फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटी प्रोटोजोआ इज लाइक एन एनिमल देन ए सिंगल सेल। एज सच ही कॉल्ड प्रोटोजोआ एज एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको आज की तारीख में हम लोग सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर आता है कि ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पूरी की पूरी लाइफ के अंदर रहती होता है। देखिए, इट कैन परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लोकोमोशन, न्यूट्रिशन इनसाइड द सेल। बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है, मिलता है, या कोई फिल्मी हस्ती आती है, हम लोग के मन में बात आती है, इसकी खास बात क्या है? सचिन तेंदुलकर की कोई खास बात हो सकती है, अमिताभ की कोई खास बात हो सकती है, किसी टीचर की कोई खास बात हो सकती है, किसी जो सब्जेक्ट है। तो प्रोटोजोआ लाइक पोरीफेरा एंड अदर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, इसके कुछ खास कैरेक्टर है। बहुत से कैरेक्टर्स होंगे, मैं अगर सब कैरेक्टर्स को तो हरीडली बात करूंगा, लेकिन अगर हम कुछ कैरेक्टर्स की बात करें जो खास होते हैं, मैं खास कैरेक्टर्स की बात करूंगा।
प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स अगर मैं आपको हरीडली गिनाऊं तो आप जानते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, नेकेड आई से नहीं देखते हैं। मैंने बताया दे आर सिंगल एसेलुलर एनिमल्स, प्लस दे आर ईदर सॉलिटरी और कॉलोनियल। कॉलोनियल आपने देखा है वॉलबॉक्स वगैरह हैं जो सार्कोमेस्टाइगोफोरा में, दे आर कॉलोनियल। They are, their body is naked like Plasmodium, other thing, and it may be covered by pedicle or skeleton. आपने देखा होगा कुछ जो सार्कोडिना ग्रुप के एनिमल्स हैं, यूग्लाइफा हुआ, एल्फीडियम हुआ, पॉलिस्टोमेटा हुआ, वेरियस शेप वेरिएशन होता है। साइटोप्लाज्म आपको मालूम नहीं है। प्लस अगर हम देखें तो ये अपनी जो बॉडी की एक्टिविटीज है ये पूरी सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। अगर हम अब खास बात कहें तो पहला बात जो नोट करने लायक है सभी स्टूडेंट को, जो इनका यूनिक कैरेक्टर है, that their body organization is at subcellular level। मैंने देखिए लिखा है highly specialized subcellular level। इसके आगे जाएंगे पोरीफेरा सेलुलर लेवल पे, अर्थात प्रोटोजोआ में जो सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो सीडोपोडिया, फ्लैजिला, ये बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन में मदद करते हैं। पहला खास कैरेक्टर क्या हो गया? सब सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या हो गया? ऑस्मो रेगुलेशन बाय कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये मोस्ट ऑफ दी अमीबी, पैरासिटिक और मैरीन को छोड़ दीजिए, मैक्सिमम अमीबी में, मैक्सिमम प्रोटोजोन्स में क्या होता है, ये वाटर में रहते हैं। बाहर का वाइट वाटर हाइपोटोनिक होता है, इनका बॉडी साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक होता है, पानी निरंतर आता है, बट दे हैव टू मेंटेन देयर कांस्टेंट शेप, सो दे रेगुलेट देयर excess water by a process called osmoregulation. And the third very important process is asexual reproduction is predominant. Sexual reproduction is rare. And सारे प्रोटोजोन्स, चाहे वो तुरुपी हो, फ्लैजिलेट हो, पैरासिटिक फॉर्म हो, सिलुएट हो, all of them divide by asexual reproduction. And sexual reproduction केवल सिलुएट और स्पोरोजोन्स में पाया जाता है। ये तीन खास बात नहीं। और दूसरा, ये जो फूड इनटेक लेते हैं उसमें ये फूड वैक्यूल्स का इस्तेमाल, तीन खास कैरेक्टर हो गया। ये बात को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, प्रोटोजोआ आज से 1.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे आए, और अगर हम आज की तारीख में देखें तो 66,000 स्पीसीज प्रोटोजोआ की नोन है, जिसमें से 50% फॉसिल्स हैं, and rest of them they live either in water or in soil or in air। और इसको अगर हम ब्रेकअप करें तो करीब 34,000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 32,000 फ्री लिविंग है, जिसमें से 21,000 आर फ्री लिविंग एंड 11,000 आर पैरासिटिक। अगर हम नीचे ब्रेकअप देखें, डाटा दिया गया है, यू मे नोट इट डाउन। फ्लैजिलेट 6,900, 11,550, 7,200, स्पोरोजोन 5,600, और इसका ब्रेकअप भी फ्री लिविंग पैरासिटिक का दिया हुआ है। ओवरऑल प्रोटोजोआ समूह में कितने एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसमें से दे आर फ्री लिविंग ऑल्सो एंड पैरासिटिक। बात को हम अपनी आगे बढ़ाते हैं। बेटा, सारे बच्चे ध्यान दें, एक पुराना जब हम लोग पढ़ते थे तो पूरे लिविंग किंगडम को दो में बांटते थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अर्थात कार्लिनियस ने 1758 में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। लेकिन बाद में जो नया सिस्टम आया विटेकर का 1969 में, अकॉर्डिंग टू विच किंगडम प्रोटोजोआ, किंगडम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई। तो प्रोटोजोआ पहले किंगडम एनिमलिया में होता था एज फाइलम, बट यहाँ पे किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा में आ गया है और इसका स्टेटस भी बदल गया है। तो प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की बड़ी लंबी जर्नी है। 3 मैं 2 ओल्ड क्लासिफिकेशन केवल आपको समराइज दिखाऊंगा, और नया क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसकी चर्चा करेंगे, जो अभी किताबों में भी नहीं आया है। हम उसकी बच्चों से बात करेंगे। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ के 3 फेज हैं। पुरानी किताब कोई भी उठा के देख लीजिए आप, लेवाइन की और तमाम रिनाउंड प्रोटोजोलॉजिस्ट की 1880 से 1949 तक। और ये फेज 1 था, इसमें बड़े हैफेजर्ड थे। सार्कोडिना में पैरासिटिक फॉर्म है, सिलिएट्स में ओपेलाइना है। सो ये इसको पहली बार सेकेंड फेज में ठीक किया गया और थर्ड फेज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया गया। ये तीनों फेजेस की जर्नी पे नजर डालते हैं। सबसे पहला फेज है जो हमने बताया आपको 1880 से 1949। ये रिनाउंड प्रोटोजोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन प्रपोज किए थे। कैल्किन बहुत अच्छी किताब है, हार्टमैन बहुत अच्छी किताब है इनकी, वेनियन, क्यूडो कहते हैं बाइबल ऑफ प्रोटोजोआ क्यूडो की है, आरपी हॉल, पियर्स का, जॉन एंड जॉन। तो ये सारे लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया उनका बेसिक आउटलाइन था प्रोटोजोआ फाइलम अंडर किंगडम एनिमेलिया। और इधर इन्होंने क्या किया था, प्लाज्मोड्रोमा सब फाइलम में, पैरासिटिक फॉर्म सार्कोडिना में, फ्लैजिलेट मैस्टाइगोफोरा में और अमीबी सार्कोडिना में, फ्लैजिलेट मैस्टाइगोफोरा, पैरासिटिक स्पोरोजोआ में। और इधर इन्होंने सिलिएट्स को बांटा दो में प्रिमिटिव एंड वो। बट दिस क्लासिफिकेशन वाज शोइंग नो फाइलोजेनी। पता ही नहीं लगता किससे कौन इवॉल्व हुआ है, इसलिए क्लासिफिकेशन बाद में चल के एक्सेप्ट नहीं हुआ और नया क्लासिफिकेशन की बात आई। वो क्लासिफिकेशन था 1964 में हॉनिगबर्ग एट अल। हॉनिगबर्ग एक थे मेन और कई और लोग थे, और इसमें इन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन लोकोमोटरी और मेन 4 फाइलम बनाए, फाइलम बनाए। पहला सार्कोमेस्टाइगोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ, तीसरा नीडोस्पोरा, जिसमें कि एसिड फोर थे, इसमें अर्थात इसमें कुछ स्पीशीज आती है, नोसिमा एपिस जो हनी बी में होती है, एपीकल्चर में बीमारी होती है पेब्रिन की, नोसिमा बॉम्बिसिस, और एक बड़ा अच्छा पैरासाइट एनोप्लिन, वो भी नीडोस्पोरा, और सिलियोफोरा में सारे सिलिएट्स पाए जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन बच्चों को लोग को बुक्स में मिलेगा। मेरी समझ से आरएल कोठार, जॉर्डन वर्मा, एससी निगम और कोई भी किताब अगर आप देखेंगे तो उसमें यही क्लासिफिकेशन आपको बुक में मिलेगा। लेकिन मैं आपसे जो क्लासिफिकेशन चर्चा करूंगा वो क्लासिफिकेशन है 1980 का। एंड मेरा अपना मानना है जितने भी बच्चे हैं सब 1980 के बाद पैदा हुए। तो अब अगर हम 1980 को लेटेस्ट कह रहे हैं तो कम से कम ये बात बच्चों से ज्यादा हमें शेयर करनी चाहिए। तो इसको हम समरी को बात करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोटोजोलॉजिस्ट। लेवाइन एट अल ने 1980 में इसमें दिया और इसमें क्या किया उन्होंने, सब किंगडम प्रोटोजोआ हो गया अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। जो पीछे मैंने आपको बिटैकर का दिखाया था किंगडम प्रोटिस्टा, सब किंगडम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का ओहदा बढ़ गया, जैसे मंत्री कोई होता है स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उसी तरीके से एक टैक्सोनॉमिक हियरार्की होती है, किंगडम, फाइला, सब फाइला, सुपर क्लास, क्लास, ऑर्डर। उसी तरीके से प्रोटोजोआ वाज नाउ सब किंगडम। 7 फाइलम थे, सार्कोमेस्टाइगोफोरा, अमीबी फ्लैजिलेट के लिए, एपीकॉम्प्लेक्सा नया नाम था, स्पोरोजोआ हटा के इसमें प्लाज्मोडियम वगैरह आते। माइक्रोस्पोरा अभी मैंने जो पीछे आपको बोला स्पोरोजोआ नाम था, चूंकि इसका नाम नया दिया। और ये नए 3 ग्रुप स्टार्ट किए, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं, लेबिरिंथोमार्फा एंड मिक्सोजोआ। मिक्सोजोआ आज की तारीख में ये सीलन रेट के पास पहुंच गए, एक नया डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन 80 तक इनको यहां रखा गया था। एसिडोस्पोरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाईली इवॉल्व ग्रुप है सिलियोफोरा, जिसमें आप पैरामीशियम पढ़ते हैं, बॉटिस्टेला वगैरह पढ़ते हैं। तो ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन बच्चों हमने तुमसे शेयर की। दिस इज द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन। मेजर चेंजेस क्या हुए अगर इसकी समरी पे नजर डालें तो आइए देखिए। मेजर टेक्सोनॉमिक चेंजेस जो आप देखिए तो सार्कोडिना मेस्टाइगोफोरा पहले अलग थे, इनको एक जोड़ के ग्रुप बनाया गया सार्कोमेस्टाइगोफोरा। स्पोरोजोआ जो पुराना ग्रुप था उसको डिवाइड कर दिया गया नीडोस्पोरा, अर्थात ऐसे स्पोर्स जो कि जिसमें पोलर फिलामेंट होते हैं, जिसका आगे नाम दिया गया माइक्रोस्पोरा, और स्पोरोजोआ जिसको नया नाम दिया गया एपीकॉम्प्लेक्सा। ओपिलाइना पहले सिलिएट्स में था, अब उसको नए ग्रुप में शिफ्ट किया गया ओपेलाइना में। कारण ओपेलाइना की जिंदगी लाइफ साइकिल में फ्लैजिलेटेड गैमीट्स पाए जाते हैं और इसके पास कोई भी सिलिएट वाला कैरेक्टर नहीं है। आप देखिए डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस है नहीं, सिलिया है नहीं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही। तो आप देखिए दिस इज क्लोजर टू फ्लैगेलेट ऐसे, जिसका नया ग्रुप बना दिया गया सार्कोमेस्टाइगोफोरा में, एक अमीबे के लिए, एक फ्लैगेलेट के लिए, तीसरा ओपेलाइना जैसे एनिमल के लिए नाम था ओपेलेटिया। पायरोप्लाज्मा ये पहले स्पोरोजोआ में था, जबकि ये अमीबा लायक है, इसको सार्कोडिना में शिफ्ट किया गया। टॉक्सोप्लाज्मा पहले अमीबी में था, इसको सही स्थान दिया गया स्पोरोजोआ में। ये वेटनरी डिजीज का है, टॉक्सिप्लाज्मोसिस कॉज करता है। और जो ये नए क्लासिफिकेशन मैंने आपसे बात की है, इसका समानता देखेंगे सजेस्ट की थी। ऑल दी फाइला, सब फाइला, सुपर क्लास एंड में होगा ए, स्पोरोजोआ, सार्कोमेस्टाइगोफोरा, सिलियोफोरा, क्लास में सिलिएटिया, ईए, सब क्लास आईए, ऑर्डर इडा, यूग्लिनिडा, सार्को फोरिडा, सब ऑर्डर इना, फैमिली। ये तो टैक्सोनॉमी चेंजेस आप देखें। और आज जो रिसर्चेस हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं कोरोना में, देखिए वैक्सीन और डीएनए की बात होती है, तो हम लोग जो नई स्टडी करते हैं, किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें हम लोग बायोकेमिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड आज की तारीख में आइसोएंजाइम पैटर्न किसी एनिमल का क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन आरएनए या डीएनए या दोनों में क्या है, उसको कंसीडरेशन में लेते हैं। प्लस हम क्लोन कल्चर करते हैं, मिक्स नहीं। अर्थात यदि पैरामीशियम के 2 स्ट्रेन है तो अलग अलग स्ट्रेन होने चाहिए, किस सोर्स से मिला है, किस रीजन से मिला है। अक्सर होता है, आप देखिए इस समय कोरोना का एक नया स्ट्रेन चला, तो स्ट्रेन में वेरिएशन हो सकता है, इसलिए क्लोनल कल्चर बहुत जरूरी होता है। प्लस आजकल आइडेंटिफिकेशन में, डिजीज डायग्नोसिस में सब जगह पे इम्यूनोलॉजिकल टूल्स का यूज हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करना। और बच्चों आप सभी जानते हैं, आजकल हम लोग को यदि कोई चीज पता करनी है तो हम लोग पूरी बॉडी का स्कैन कराते हैं। तो हमें अगर स्टडी भी करना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ एंड TEM टोपोग्राफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो पिक्चर्स आती हैं उनकी मदद लेते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि प्रोटोजोआ में इनकी मदद से कंसेप्ट चेंज हो गए, पूरे के पूरे कंसेप्ट चेंज हो गए, उसकी बात करेंगे। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोटोजोआ दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी की, तो वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर। सम आर राउंडेड, some are oblong, some are spindle shape। आप देखते हैं स्पिंडल शेप यूग्लिना हुआ, ऑब्लॉन्ग भी हो सकते हैं, बेल शेप भी हो सकते हैं, बॉडी से। हैबिटेट डाइवर्सिटी, दे मे बी फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक इन वाटर, इन सॉइल, ब्लड, आइस, स्टूल। फंक्शनल डाइवर्सिटी भी है, सीडोपोडिया अलग है, फ्लैजेलम अलग है, सिलियम अलग है। एंड स्पेसिफिक डाइवर्सिटी होती है जिसमें आपने कई एनिमल्स के नाम देखे। और अगर हम हैबिटेट की बात करें तो कुछ प्रोटोजोन्स दे आर इकोलॉजिकली डाइवर्स, वाइडली स्प्रेड, बट दे आर कुछ जो है उनका बड़ा नैरो हैबिटेट, जैसे प्लाज्मोडियम ब्लड में ही पाया जाएगा, यूग्लिना वाटर में कहीं भी पाया जाएगा, अमीबा कहीं पाया जाएगा। तो वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स, सॉइल में पाए जाने वाले एनिमल्स, एयर में पाए जाने वाले एनिमल्स, blood, intestine, eyes और brain में। So these protozoans may be found in a variety of habitats. Some may be found in mixed and some have a very narrow habitat range. आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सम अप का पॉइंट है हैबिटेट के बारे में। मोस्ट प्रोटोजोआ लिव्स इन डिफरेंट हैबिटेट एज फ्री लिविंग। पानी में भी पाए जाते हैं यहाँ वहां के, और कुछ पाए जाते हैं पैरासिटिक्स, and they have different shapes and different physiological activities. अब बच्चों हम एक नया पड़ाव शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए रुक के आपसे एक बात कहूंगा। मेरा अपना पढ़ाने का तरीका यही है और आप लोग को भी चाहिए। देखिए, यदि आपको कोई प्रोटोजोआ का एनिमल पढ़ना है, पोरीफेरा का पढ़ना है, स्नेक्स के बारे में पढ़ना है, बर्ड्स के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स जान लीजिए, मॉर्फोलॉजी जान लीजिए। जब आप उसकी मॉर्फोलॉजी जान लेंगे तो आपको उसके फंक्शनल एस्पेक्ट समझने में आसानी होगी। यदि हम कोई प्रोटोजोन या पोरीफेरा का पूरा स्ट्रक्चर जान ले, कैसा दिखता है, किन किन चीजों से बना है, तो फिर हम उसकी लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन की बात समझ पाएंगे। तो आइए कैसे इसके डिटेल्स में क्या क्या खास बातें होती हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और कुछ नई इंफॉर्मेशन आपसे हल्दी शेयर करेंगे।
और मैं उल्टी तरफ से चल रहा हूं। एडॉप्टेशन इन सीरिएट्स, अर्थात सीरिएट्स हाईली इन्वॉल्व एनिमल्स है। फिर अडॉप्टेशन इन फ्लैजिलेट्स, एडॉप्टेशन इन सार्कोडिना अमीबी लाइक एनिमल्स एंड एडॉप्टेशन इन स्पोरोजोस। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग पैरामीशियम पढ़ते हैं। पैरामीशियम में सीरिया पाया जाता है, लेकिन आप देखिए कुछ एनिमल्स में बहुत से प्रोटोजोन्स हैं जिसमें सीरिया एक नहीं, फ्यूज करके बनाते हैं सिर्राई और मेम्ब्रेन मींस पूरा का पूरा रिबन बना देते हैं। तो पैरामीशियम की बक्कल कैविटी में 4 रो की सीरिया पूरी लेंथ में यूनाइट करके बक्कल मेम्ब्रेन बनाते हैं। इनको बोलते हैं डार्सल पेनिकुलाई, वेंट्रल पेनिकुलाई एंड क्वाड्रुलस, राइट हैंड के डायग्राम में दिख रहा है। इनका काम होता है बाहर के सीरिया पहले बीट करते हैं, वाटर करंट क्रिएट करते हैं, खाना आता है और ये अंदर के जो बक्कल मेम्ब्रेन है ये बड़े बड़े खाने को बाहर भेज देती है, छोटा खाना अंदर ले लेती है। अर्थात these compound ciliary organelles help in food selection। लेफ्ट के डायग्राम में देखिए, ये हम लोगों में वॉकिंग लेग्स होते हैं, तो ये सिराई इनका टेक्टाइल ऑर्गन के अलावा वॉकिंग लेग्स का काम करती है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सिलिया ये देखा गया है, एक नई चीज। ये भी मैंने आपको बताया। लेफ्ट के डायग्राम में देखिए, जो पैरामीशियम की बक्कल कैविटी है वहां के सिलिया बीट करते हैं, एक कोन बनता है, फूड आता है, फूड अंदर जा रहा है और अंदर बक्कल मेम्ब्रेन इसके बड़े खाने को बाहर कर देती है, लिखा है रिजेक्शन पाथ। छोटा खाना अंदर ले लेती है, इसको लिखा है सिलेक्शन पाथ। फिर अंदर फूड चला जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर, और वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करता है जिसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। और साइक्लोसिस जब होती रहती है तो करते हैं की प्रक्रिया इसी साइक्लोसिस में होती है। साइक्लोसिस शॉर्ट कोट में आपसे पूछा जा सकता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर्पस ये था आपसे बताने का कि कैसे सिलिया के अलावा जो कंपाउंड सिलिया ऑर्गेनेल्स है वो कैसे मदद करते हैं कुछ ना कुछ। तो ये मैंने आपको पैरामीशियम का सहारा लिया। और 2 तरह के खाने होते हैं, एक स्विवलेट्स अर्थात वाटर करंट के द्वारा क्रिएट करना, और दूसरे गुल्पर्स, पूरा का पूरा खाना स्वालो कर लेते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये बच्चों एक नई इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा पता चली कि बहुत से प्रोटोजोआ के सरफेस पे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कुछ काम करते हैं। इनका नाम ही देखो लिखा है, एक्सट्रूसोमा। एक्सट्रू मीन्स बाहर, सोमा मीन्स बॉडी। बॉडी के बाहर पाई जाने वाली संरचनाओं को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव बॉडीज। व्हाट आर दे? कॉम्प्लिकेटेड structures found in the cytoplasm of all the protozoans which can be wholly or partly extruded, बाहर की तरफ निकल सकते हैं in response to certain stimuli, mechanical, chemical and always located to the cell membrane। आप जानते हैं ट्राइकोसिस पैरामीशियम में और नाम दिए गए टॉक्सिसिस वगैरह, कि जैसे आजकल हम लोग गन लेके चलते हैं, प्रोटोजोआ के पास ये फैसिलिटी है जिसकी मदद से ये प्रेग पे अटैक कर सकता है। ये हम आपको डायग्राम के द्वारा ब्यूटीफुली दिखाएंगे। ये वो ट्राइकोसिस है। देखिए पहला डायग्राम पैरामीशियम का है, उसकी बॉडी सरफेस पे सिलिया के आउटलेट छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ट्राइकोसिस। एक डायग्राम जो बीच में दिख, हेलो सर कोई डायग्राम नहीं दिख रहा है, स्लाइड पे डायग्राम नहीं दिख रहा है। मेरी स्लाइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रहा है सर। आपका फेस नहीं, मेरे फेस से बेटा आप तो साइड में स्क्रीन पे होंगे। छते क्या है तुम्हारा? स्लाइड डायग्राम दिख नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। बीच के डायग्राम में ए देखो, इट इज ए रेस्टिंग ट्राइकोसिस, इसका साइज 4 माइक्रोन होता है। हेलो मुझे भी नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है बच्चों का नेटवर्क इशू होगा इसलिए सर वहां पे दिख नहीं रहा होगा, वैसे दिख रहा है सर। स्लाइड नहीं दिख रहा है, सर का फेस दिख रहा है। बेटा मेरी स्क्रीन दिख रही है, आप लोग को दिख रही है? हाँ दिख रही है सर, दिख रही है सर, दिख रही है। आप कंटिन्यू करिए सर। और थोड़ा सा साउंड म्यूट रखो जिससे कि लेक्चर चलता रहे, आप सुनोगे तो भी समझ में आएगा। तो एक रेस्टिंग ट्राइकोसिस जो पूरी बॉडी में होती है, इसका साइज 4 माइक्रोन होता है, और जब इस पे कोई अटैक करता है तो ये बाहर की तरफ छोड़ देती है। हम लोग बीएससी में डिस्चार्ज ट्राइकोसिस की प्रिपरेशन कराते हैं, इसका साइज 10 गुना बढ़ जाता है।
और 10 गुना 40 माइक्रोन का हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि ट्राइकोसिस्ट ऑफेंस डिफेंस में मदद करती, लेकिन नहीं। पैरामीशियम को जब कहीं लोकोमोशन के बाद खाना खाना होता है, ट्राइकोसिस डिस्चार्ज करता है, किनारे ये ट्राइकोसिस के सहारे चिपक जाता है और फूड करंट लेता है। तो ये खाने में मदद करती, ऑफेंस डिफेंस में नहीं। एक नया कंसेप्ट है, पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपसे शेयर किया। ये देखिए एक एनिमल है, ऊपर दिखाई दे रहा है, डायलेप्टस इसका नाम है। इसकी देखिए हाथी की सूंड जैसी संरचना, प्रोबोसिस दिखाई दे रही है। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, इसकी यहां पे अगर काट के देखिए, इसमें टॉक्सिसिस्ट होती है। ये क्या करता है, एक बार ऐसे अपनी सूंड वो एनवायरमेंट में छोड़ता है, 70 पैरामीशियम को ये पैरालाइज कर देता है और आराम से ये उसको खा लेता है। और एक सिंगल छोटा सा टॉक्सिसिस्ट एकदम एक्सट्रीम राइट में दिखाया गया है। और ये एनिमल में ब्यूटीफुल है कि एक बार ये टॉक्सिसिस्ट डिस्चार्ज करेगा, आधे घंटे के बाद इसकी बॉडी में फिर से बन जाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक सिंगल सेल एनिमल के अंदर कहां से भगवान ने कैपेसिटी दे दी कि उसको खाना है तो वो अपने अंदर टॉक्सिसिस्ट करेगा। बुलेट लाइक स्ट्रक्चर्स है। सो दीज आर द न्यू कंसेप्ट व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम सम ऑफ द सिलिएट्स। ये देखिए एक एनिमल है बड़ा ब्यूटीफुल, डाइडीनियम। डाइडीनियम पैरामीशियम को पूरा सॉल्व कर जाता है। तो अगर पहला डायग्राम टॉप का देखें, उसमें डार्क कलर के थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर टॉक्सिसिस्ट, और नीचे लंबे वाले पैक्सिसिस्ट है। टॉक्सिसिस्ट छोड़ता है, पैरामीशियम करीब 50-70 पैरालाइज हो गए और धीमे से उनको अटैक करके खा के पूरा सॉल्व कर लेता है। ये देखिए एक्सट्रीम डायग्राम, कैसे पूरा पैरामीशियम उसकी बॉडी के अंदर चला गया। दिस इज द डायग्राम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो ये नई संरचना पाई जाती है, टॉक्सिसिस, पैक्सिसिस वगैरह वगैरह। ये एनिमल्स को बहुत मदद करती हैं, जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के द्वारा पता चला। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सक्टोरिया ग्रुप का एक एनिमल है, उसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं सक्टोरियल। देखिए लेफ्ट साइड में एक टेंटिकल दिखा है, इसके टॉप पे देखिए छोटी छोटी संरचनाएं हैं, इनको क्या कहते हैं, बुलेट्स लाइक होती, हेप्टोसिस्ट। सबसे लास्ट में डायग्राम दिया है, देखिए बल्ब लाइक हेप्टोसिस्ट। तो ये ढेर सारी हेप्टोसिस्ट होती है। ये अपना टेंटिकल किसी एनिमल के ऐसे छोड़ता है, एनिमल की बॉडी में छेद कर देता है और पूरा का पूरा फूड सक कर लेता है। बीच के 2 और तीसरे डायग्राम में कैसे खाना अंदर लेते हुए दिखाया गया है। सो दीज हेप्टोसिस्ट आर बुलेट लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प द एनिमल इन अटैकिंग एंड फूड इनटेक। सो दीज आर द स्ट्रक्चर वी कुड नो अबाउट इट ओनली आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। ये कुछ और संरचनाएं जो और एनिमल्स में पाई जाती है, भी हम क्विक चला रहे हैं स्लाइड्स, कुछ सिलिएट्स के डायग्राम दिखाने के लिए जो खास होंगे बताएं। हाल्टेरिया, स्पाइरोस्टोमम, स्कैंटर पानी में पाया जाता है। यदि आप माइक्रोस्कोप लेके लैब में बैठे तो एनिमल्स अक्सर आपको दिखाई देते हैं। और ये यूरोस्टाइला, स्टाइलोनीचिया, ऑक्सीट्यूराइका, ये अक्सर पानी में दिखाई देते हैं। यूप्लाटिस एम्पिस्टेला और नेसुला, काइलोडिनेला, सक्टोरियल जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, कैसे तक कर लेते हैं फूड, उस ग्रुप का एनिमल है ये। और ये कॉलपोडा पाया जाता है, लॉक्सोफाइलम, एम्फीफाइलम, कॉलिप्स, पानी में बहुत दिखता है ये। और ये डायलेप्टस जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, कैसे ये पैरामीशियम को पूरा सॉल्व कर जाता है। ये एपिस्टाइलिस, ये आपका वर्टिसेला जैसा एनिमल है। और उसके बाद आप देखिए वर्टिसेला का ब्रदर है, कॉर्चेशियम पाया जाता है, जो कि इसी तरह का पेरिट्राइक का है, इन्वर्टेड बेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये वर्टिसेला जिसको आप देखते हैं, ये साइक्लिडियम पानी में अक्सर घूमता रहता है, बहुत किया देखा है। फिशेस में डिजीज होती है जिसको लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, वर्मा जी हमारे टीचर जानते होंगे, व्हाइट स्पॉट डिजीज बोलते हैं। तो एक डिजीज बहुत नुकसान पहुंचाता है। और एक लास्ट है प्लूरोनिमा साइक्लिडियम में। ये तो रही बात सिलिएट्स की। आइए टेट्राहाइमिना पैरामीशियम हम लोग पढ़ाते ही हैं। आइए फ्लैजलेट्स में आते हैं। फ्लैजलेट्स में यूग्लिना का नाम सभी ने सुना है। ये फोटोसिंथेसाइज करके अपना फूड बनाता है। इसका नाम क्यों पड़ा? साइंस में कोई भी बेटा टर्मिनोलॉजी और नाम जो है ऐसे ही नहीं है, अर्थ होता है। EU मीन्स ट्रू, ग्रीन मीन्स eyeball, green means eyeball, or viridis means green. Green color animal having true eyeball-like structure is called euglena. आप देखिए इसमें स्टिग्मा दिखाई देता है। ये इनका ग्रीन मतलब eyeball-like structure है, ये फोटोसिंथेसाइज करता है। लेकिन इसमें और जो फ्लैजलेट्स है,
फैकस, पेरेनिमा। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, बच्चों तुम लोग को मालूम होना चाहिए। एक युग्लिना पानी में तैरता तो है ही है, लेकिन ये युग्लिनॉइड मूवमेंट करता है जो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है। इसको हम मेटाबॉलिक मूवमेंट भी कहते हैं। जब इसकी बॉडी का सेक्शन करेंगे, ये देखिए आपको ब्रिजेस ग्रुप दिखाई दे रही है अंदर की तरफ, और ये ऐसे नहीं मरोड़े खाता है, अर्थात युग्लिना अपना शेप चेंज कर सकता है। ये जो इसकी ग्रुप्स एंड ब्रिजेस है इसको मदद करती हैं। और इसके नीचे जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, दे आर द म्यूसिफेरस बॉडीज। So these multiferous bodies provide lubrication, and these grooves and ridges provides the animal to change its shape. And in euglenoid movement, animal has the capacity to change its shape, becomes rounded, become oblong. और ये पानी जब कम होता है इस तरह का मूवमेंट परफॉर्म करता है। इसको मेटाबॉलिक मूवमेंट, ग्रेग्राइन मूवमेंट या यूग्लिना में पाया जाता है, यूग्लिनॉइड मूवमेंट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक पेल्कम। डाइनोफ्लैजिलेट्स, बच्चों आपने बीएससी में पढ़ा होगा नॉक्टिल्यूका में। नॉक्टिल्यूका ठीक है, ये बड़ा खास इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फॉस्फोरिसेंट होता है। इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है ल्यूसीफरीन, जो ल्यूसीफरेज की एंजाइम में लाइट इमिट करता है। और टेंटिकल केवल एक प्रोटोजोआ में पाया जाता है, वो है नॉक्टिल्यूका, और छोटा सा इसमें फ्लैजिलम होता है। इसी फैमिली के और एनिमल्स होते हैं नॉक्टिल्यूका लाइक, और वो पेरिनियम हो गया जो ग्रुप का एनिमल है। अगर आप इसमें देखिए दो फ्लैजिलम होते हैं, एक बेल्ट नुमा और एक ऐसे। ये पानी में ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकते हैं। ये दूसरा जो फ्लैजिला है उसमें मदद करता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं तीसरी स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। आपने रेड टाइड सुना होगा बच्चों, रेड टाइड, ठीक है। होता क्या है, एक एनिमल जब दो में डिवाइड होता है, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन जब ज्यादा में करता है, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह, उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं, स्वार्मर्स। तो ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, अर्थात नॉक्टिल्यूका जैसे बहुत से एनिमल, ये जब अच्छा खाना पानी मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा इतनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं कि बाद में ये इनको सामान नहीं मिल पाता है, ना एयर ना फूड, तो ये मरने लगते हैं। और वहां पे क्या कॉज करते हैं? रेड टाइड कॉज करते हैं। ये देखिए हम आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, रेड टाइड का समुद्र का पूरा किनारा रेड हो गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ these animals which in presence of favorable condition of food, oxygen and other thing over multiply and later on start dying, putrefying, and they cause mortality of aquatic fauna, fishes वगैरह की। तो रेड टाइड आपको मालूम है, रेड टाइड जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फिजन इन पेरिडिनियम, नॉक्टिल्यूका, जिम्नोडिनियम। और ये देखिए फिशेस कैसे मर जाती हैं सीशोर में। सो दिस इज अ फिनोमिना यू शुड नो अबाउट दीज एनिमल्स। खाली बॉटीसेला स्पॉटिंग के लिए नहीं, रेड टाइड के बारे में भी मालूम होना चाहिए। बात को आगे बढ़ाते हैं। ये एनिमल फ्लैजिलेट्स है बेटा, यही एक पैरासाइट ऐसा है जिसको कहना चाहिए, जैसे हम लोग डॉन कहते नहीं है, सबसे बड़ा डॉन आदमी में हम लोग में जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है, अर्थात वो अपने भेष बना बना के छिपता है, पिक्चरों में भी दिखाते हैं ऐसे। तो ट्रिपैनोसोमा इज ए पैरासाइट। Why it is called this biggest parasite? Because मैंने लास्ट पॉइंट दिखाया, it has magical capacity to change its somatic antigen, अर्थात ये बॉडी में प्रवेश करता है, सीसी फ्लाई काटती है, ये जाता है, ये मल्टीप्लाई, हर एक मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका बॉडी का सरफेस एंटीजन चेंज हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान नहीं पाता है, ये अपनी बॉडी में पॉपुलेशन बढ़ाता रहता है और इतना बढ़ जाता है कि बाद में ये ब्लड से होके ब्रेन तक चला जाता है, वहां पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी मल्टीप्लाई करता है और इतने टॉक्सिन छोड़ता है कि पेशेंट दिन में भी स्लीपिंग टेंडेंसी हो जाती है, वीक हो जाते हैं, प्रोन टू एनी डिजीज हो जाते हैं। इसीलिए दे कॉज स्लीपिंग सिकनेस एंड दे कॉज पेशेंट जिसका रिवर्सल नहीं होता है। WHO के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिस इज अ ब्लैक क्लाउड ऑन ह्यूमैनिटी, मानव पे ये काले बादल के समान है और इसके लिए बड़ी रिसर्चेस हो रही, लेकिन अभी तक नहीं। थैंक गॉड ये अफ्रीका में ही डिजीज है। ये ट्रिपैनोसोमा की बहुत सी स्पीसीज होती हैं, ब्रूसियाई, अविंसाई, गैम्बियंस वगैरह, और जो चगास वगैरह डिजीज कॉज करती है। ये स्लाइड है जो हमने CDRI से ली, बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड, कैसे ट्रिपैनोसोमा दिखता है RBC में, वो दिखा रहे हैं। और ये एक लीशमानिया है, हमारे बिहार, यूपी, ईस्टर्न यूपी में, बंगाल में एक बीमारी काला आजार होती है, लीशमानिया ट्रॉपिका, लीशमानिया डोनो,
विसरल लीशमानियासिस, पेट आगे की तरफ निकल आता है, उसमें पैरासाइट ये मल्टीप्लाई करता है, कॉजेज लीशमानियासिस, कालाजार। ये बहुत से फ्लैजलेट्स हैं जो आपने देखे होंगे, क्विक में फ्लैजलेट, ओपेलाइना स्टिप। ये आपसे बात कर रहे हैं जो नया कंसेप्ट आया है बच्चों। ये जो हम लोग प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं, तो मच्छर के काटने से स्पोरोजोइट ब्लड में जाता है। तो स्पोरोजोइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? लेफ्ट साइड में डायग्राम दिखाया गया है। इसमें टॉप पे जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? एपिकल कॉम्प्लेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ पोलर रिंग्स, दो होती हैं गोल गोल, रॉपट्रीज, ये जो लंबी लंबी दिख रही, सिलाइवरी ग्लैंड नुमा, कोनोइड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोनूइम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सो व्हाट हैपेंस, ये स्पोरोजोइट जब ब्लड में जाता है तो लंबा होता है, जब हेपेटिक सेल्स में पहुंचता है गोल हो जाता है। कैसे? बिकॉज दीज रॉपट्रीज, जिसको हम सिक्रीटरी ऑर्नेल बोलते हैं, ये लीवर सेल में जाके एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जिससे ये वहां पे अपना प्रवेश द्वार बनाता है। उसके बाद स्पोरोजोइट का स्पोरोप्लास्ट पूरा बाहर निकल जाता है, लीवर सेल में चला जाता है, इट बिकम्स सराउंडेड। सो दीज स्ट्रक्चर एपिकल कॉम्प्लेक्स के हेल्प द एनिमल इनटू द पेनिट्रेशन इनटू साइड द सेल्स। दूसरा राइट हैंड का डायग्राम 2 दिखाया गया है, कैसे साइजॉन्स, जो एक कहते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज में कैसे प्लाज्मोडियम ब्लड का हीमोग्लोबिन फीड करता है। तो अगर आप देखिए इसमें जो एक डार्क कलर का दिखाया गया है, ये फूड वैक्यूल है, और छोटा सा एक इन्वेजिनेशन दिखाया गया है, ये इसको हम बोलते हैं माइक्रोपोर, ऊपर लिखा हुआ माइक्रोपोर। सो पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम फीड्स लाइक अमीबा, टेम्परेरी सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर, बट लेटेस्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने प्रूव किया है कि माइक्रोपोर्स आर परमानेंट माइक्रोसाइटोस्टोम, अर्थात प्लाज्मोडियम के माउथ परमानेंट होता है, नॉट लाइक अमीबा। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपोर्स कहते हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन प्लाज्मोडियम आई शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। ये प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है तो सबसे ज्यादा डिजीज कॉज करती है अफ्रीका में, मैक्सिमम वहीं से होती है। ये बच्चों प्लाज्मोडियम की 2 स्पीशीज हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। One causes pernicious malaria and second causes black water fever. What is pernicious malaria? Plasmodium falciparum when it infect, और इसकी जब ब्लड में चलता रहता है तो इसकी जो पैरासिटाइज्ड प्लाज्मोडियम होता है ये आपस में चिपक जाता है, अर्थात प्लाज्मोडियम जो है वो चल रहा है ब्लड कैपिलरीज में। जब प्लाज्मोडियम आपस में ही चिपकने लगेगा तो ये जो फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन, वेन्यूल, कैपिलरीज, ये कैपिलरीज वगैरह जो ब्रेन की है, लंग्स की है, हार्ट की, वहां पे चिपकने से रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, हेमरेज हो जाता है। सो पर्निशियस मलेरिया इज हेमरेज इनसाइड द सेंसिटिव ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन, lungs, hearts, because of the sticking of the parasitized RBCs, and this causes motility, heavy motility। साउथ अफ्रीका में पाया गया है। ये कभी कभी ब्लड की हीमोलिसिस भी कर देते हैं। जब हीमोलिसिस से हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने से यूरिन ब्राउनिश रेड कलर की आने लगती है, उसको ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज में, वाइवेक्स, मलेरी एंड ओवेल, falciparum is highly pathogenic malignant species इसको बोलते हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये अमीबा है, 4 तरह के पाए जाते हैं। सीडोपोडियम लोब लाइक होगा तो लोबोपोडियम अमीबा में पाया जाता है। फाइलोपोडियम जब फिलामेंटस प्रोजेक्शन होते हैं यूग्लाइफा में पाया जाता है। रेटिकुलोपोडिया एल्फीडियम में पाया जाता है जब जाल नुमा छिपा रहता है। और एक्सोपोडियम ये पूरे हार्ड होते हैं जो न्यूट्रिशन में मदद करते हैं। ये टेस्टेशियस अमीबी पानी में बहुत पाया जाता है। आर्सेला क्लास में हम लोग दिखाते हैं। डिफ्लूजिया ये सैड एनिमल्स हो गए, और ये दूसरी तरह के अमीबी हो गए। ये अमीबी कैसे खाता है, 4 तरह के मेथड दिखाया गया है, तो इसके नाम भी आपको बताए गए होंगे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ये तो हमने पीछे आपको दिखाया जैसे एक बैक्टीरिया गया, पहले डायग्राम में अमीबा पैरामीशियम फीड कर ले रहा है, सेकंड में बैक्टीरिया अंदर गया, डाइजेस्ट हो गया। और ये एक पिनोसाइटोसिस, बच्चे ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, फूड ना तो बड़ा है ना छोटा है लिक्विड,
food in the form of small macromolecules which cannot pass through simple diffusion into the cell. It can reach to the inside by पिनोसाइटोसिस, अर्थात जो बाहर की उसकी मेम्ब्रेन है वो एक चैनल बनाती है जिसको बोलते हैं पिनोसाइटोटिक चैनल, और पिनोसोम्स बनते हैं और इस तरीके से फूड अंदर पहुंच जाता है। और 1 घंटे के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा गया ये खाना बंद कर देते हैं। तो पिनोसाइटोसिस एक अजीब तरह का फिनोमिना है, इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। मार्स एंड डॉले ने रिपोर्ट किया कि एनिमल में कहां से होता है, वो खाता है फिर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। सो फ्रॉम वेयर दिस एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड इट इज नॉट नोन। जो था हमने आपसे शेयर किया। अमीबा माउथ होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अमीबोस्टोम्स। जो एंट अमीबा और पैथोजेनिक अमीबा निग्लेरिया जो मेनिंजाइटिस डिजीज करता है, आप देखिए छोटे छोटे बल्ब दिखाई दे रहे हैं और ये कैसे सेल्स को खा रहा है। तो सेल माउथ ऑफ अमीबा ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैज कैपेसिटी टू फीड, स्वॉलो, अटैक एंड दे आर कॉल्ड अमीबोस्टोम्स। ये हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चला। आगे अब आपका टॉपिक आ गया सब बच्चों का, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। आप लोग कागज पेन निकाल लीजिए और नोट करिए। मैं आपसे सबसे पहले बात शुरू करता हूं। ऑल द स्टूडेंट्स सजग हैं सब? जो टीचर है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई एक जने बोले नहीं सब ठीक है, सब दिख रहा है। अब मैं जर्नी एक प्रोटोजोआ की देने के बाद मैं अब आया हूं रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। बच्चों देखो, हर एनिमल्स में कई बेसिक गुण होते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। हर एनिमल चाहता है उसकी प्रजाति बच जाए और उसके लिए वो खाता है, पीता है और रिप्रोडक्शन करता है, सो एज टू मेंटेन इट्स रेस। और ये क्या करते हैं प्रोटोजोआ में? रिप्रोडक्शन कब होता है? फीडिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अर्थात खाना, ग्रोथ हो रही है, उसके बीच में रिप्रोडक्शन आता है जिससे ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देता है। प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। देखिए रिप्रोडक्शन का मेन मकसद होता है जब गैमीट्स, मेल और फीमेल, या गैमेटिक न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जिसमें फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जाइगोट नहीं बनेगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो बेसिक बात यहाँ पे समझने की है, when there is no gametic nuclei, no fertilization, no zygote, it is asexual reproduction. When there is these things, it is sexual reproduction. प्रोटोजोआ मैंने बताया आपको एक asexual मेल मेथड है। कितनी तरह का होता है आइए नजर डालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजिक्स। जब एक एनिमल सेक्सुअल मोड से डिवाइड करके 2 एनिमल्स को जन्म देता है, उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, चाहे अमीबा में हो, चाहे पैरामीशियम में हो, फ्लैजिलेट्स में। अर्थात व्हेन ए इंडिविजुअल अंडर फेवरेबल कंडीशन डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ऑब्वियसली जो भी डिवीजन होगा, ये मान के चलिए पहले होगी कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं, मियोसिस नहीं, और फिर होगी साइटोकाइनेसिस, अर्थात माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद होगी साइटोकाइनेसिस। और 1 से 2 इंडिविजुअल बनेंगे तो बाइनरी फिजन, 1 से बहुत से इंडिविजुअल बनेंगे तो मल्टीपल फिजन, और जब छोटे छोटे न्यूक्लियस से निकलेंगे प्लाज्मोटोमी, और जब बड्स बनती है उनको बडिंग बोलते हैं। तो ये मेन फर्स्ट को समझते हैं सबसे पहले, और इसके हम डायग्राम भी आप सर सारे टू इंटरप्ट सर बच्चों सारे टू इंटरप्ट सर बोलिए। हमने कहा सर ये जहां से आपने रिप्रोडक्शन शुरू किया है उसके पहले एक बच्चे ने स्क्रीन शेयर किया था, तो इसलिए ये प्रॉपरली बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक बार ये सर इसको जहां से आपने रिप्रोडक्शन शुरू किया है इसको सर फिर से शेयर करना पड़ेगा हम लोग को। मैं भी करा आया, देखिए कि नहीं आया, नहीं तो मैं इसको कराऊं। पूछिए जरा सर बच्चों, ये पहली से यस सर इट इज विजिबल। अब बच्चों दिख रहा है? मैं देखो एस ठीक है, अब मैं एक स्लाइड बढ़ाऊंगा। अब दिखाई दे रहा है? अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यस सर इट इज विजिबल। नहीं दिख रहा है। हमारे को नहीं दिख रहा है। अब
हमें लग रहा है कुछ लोगों में वर्मा जी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको दिख रहा है ये कि यहीं दिख रहा है। साक्षी शुक्ला, ये बीच में आप लोग सेकेंड आईडी खोलिए आप लोग। Go to the second ID of AK Sharma sir. साक्षी शुक्ला, बीच में ये आप लोग जो स्क्रीन शेयर करते हैं, ये स्क्रीन शेयर नहीं करिए। स्क्रीन शेयर करने से काम गड़बड़ हो जाता है। जो स्क्रीन शेयर बीच में अभी साक्षी शुक्ला ने स्क्रीन शेयर किया। जो एडमिन है उसको बोलिए कि सब बच्चों को उस मोड पे ले आए कि उनको दिखे, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको हम फिर समझा के फिर थोड़ा इन लोग को हम और बात करेंगे। देख लें, क्योंकि ये थोड़ा चलेगा, आधा घंटा, इसमें मैंने पूरा डिटेल डायग्राम दिया है। बच्चों दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? Yes sir. No sir. Sir excuse me sir. नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिख रहा है सर। नो सर, कुछ लोग नहीं दिख रहा है कि एडमिन वहां से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मेरा मत है वर्मा जी, ये बच्चों के या तो कोई एडमिन कैन टैकल इट। हमारी तरफ से आपको दिख रहा है वर्मा जी स्क्रीन पे कि नहीं? हमको तो दिख रहा है सर। Yes sir, बिल्कुल दिख रहा है सब कुछ। Yes sir, दिख रहा है। सेकेंड आईडी नहीं खोलिए, सेकेंड आईडी नहीं ये ऐसा ना कि बच्चे मेरे को हमारे नहीं दिख रहा है सर। ज्यादातर से अगर बच्चे हमारे ग्रामीण सेकेंड इलाके से आईडी हैं, तो उनके यहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। नो सर, नेटवर्क की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है सर। जो सर की AK शर्मा सर की सेकंड आईडी है उसे पिन करें ये लोग, तो उसमें विजिबल है। ये सर फर्स्ट आईडी फर्स्ट आईडी में सर का फेस विजिबल है, देन सेकंड आईडी में जो सर हमें पीपीटी दिखा रहे हैं वो दिख रहा है उसमें। मेरी सेकंड आईडी नहीं दिख रही है। यस सर बिल्कुल। कहाँ दिख रहा है जी? बात नहीं करिए आप, बात नहीं करिए, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। वो मेरे को बता दीजिए। अब चुपचाप सुनिए आप लोग, और ये दिखाई दे रहा है। प्रीति यादव अनम्यूट करिए, म्यूट करिए अपने आप को, माइक्रोफोन ऑफ करिए। नहीं दिख रहा। रुहीना अंसारी माइक्रोफोन ऑफ करिए। तो बच्चों सब लोग अगर अपना स्क्रीन अपना साउंड ऑफ कर लो, म्यूट कर लो, तो फिर मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं भी दिखेगा तो मैं समझा रहा हूं। और मैं जब आऊंगा एक दफे कभी भी इलाहाबाद, मैं आप लोगों से मिलूंगा, तब एक दफे फिर से आपसे बात कर लूंगा। वर्मा जी बढ़ाएं? हाँ सर, जी सर, जी सर। हाँ सर कंटिन्यू करिए सर। हाँ ठीक है सर। तो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, जो प्रोटोजोआ का प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके लिए ये जरूरी है कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। दूसरा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई जाइगोट नहीं बनेगा। तो आइए, जब ये मैंने बताया 4 तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोटोमी, बडिंग। मेन जो बाइनरी फिजन है, जब एक इंडिविजुअल एसेक्सुअली डिवाइड करके 2 बनाता है, इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। जब एक डिवाइड करता है, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह में एक से कई बन जाते हैं, और मोनोसिस्टिस में उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं, और प्लाज्मोटोमी, बडिंग अलग होता है। आइए हम जरा एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा? मोबाइल ले जाओ कहीं। बाइनरी फिजन में पहला प्रोसेस बाइनरी फिजन का ये, फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस विल डिवाइड माइटोटिकली। सारे फेजेस, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड कर जाएगा, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और 2 में एनिमल बढ़ता है। जो साइटोकाइनेसिस होती है उसका जो डिवीजन का प्लेन होता है वो कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, या कोई भी डायरेक्शन का है, ऑब्लिक है? इस बेसिस पे बाइनरी फिजन कई तरह का होता है। चूंकि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो 2 में डिवाइड करेगा, इसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, आप देखो मैंने गलती से यहां लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में वॉटिसेरा लिखा है, इसका एग्जांपल हुआ यूग्लिना। यूग्लिना देखो ऊपर से 2 में डिवाइड करता है। जितने भी फ्लैजिलेट्स होंगे, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना और जितने भी होंगे, दे डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, अर्थात उसमें न्यूक्लियस ट्रांसवर्स डिवाइड करेगा, बट एनिमल लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो साइटोकाइनेसिस का डिवीजन है वो ट्रांसवर्स है। पैरामीशियम न्यूक्लियस वर्टिकल डिवाइड करता है, और डिवीजन जो होता है बॉडी का ऐसे होता है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन ये पाया जाता है सीरेटियम में
और अगर आप देखें तो वॉटिसेला वगैरह में पाया जाता है। और लास्ट में दिए जो हम बता रहे हैं इसका डायग्राम देखिए आप लोग बच्चों। सबसे पहला सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा किसी भी डायरेक्शन से 2 में डिवाइड करेगा, इट इज कॉल्ड सिंपल। कैरियोकाइनेसिस हो गई, बाद में साइटोकाइनेसिस हुई है। सेकेंड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। आप देखिए न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हुआ है ट्रांसवर्सली, बाद में फरो आई जिसने कि लॉन्गिट्यूडनली एनिमल को 2 में डिवाइड किया, ट्रिपैनोसोमा यूग्लिना इसमें आएगा। थर्ड इज सी इज पैरामीशियम, जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड हुआ लॉन्गिट्यूडनली, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस का डिवीजन है वो ट्रांसवर्स डिवीजन है, इससे एनिमल 1 से 2 में डिवाइड करता है। और सिरेटियम ऑब्लिक बाइनरी फिजन है। सिरेटियम नॉक्टिल्यूका का कजिन है और नॉक्टिल्यूका डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है और इसे कहते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिजन। और बाद में यूग्लिफा दिखाया गया, अभी एक तरह का ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। तो ये बाइनरी फिजन मेनली अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस इट इज ऑफ 4-5 टाइप्स। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। अब आइए यही वही डायग्राम जो अभी हम पीछे दिखा रहे थे, न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है पैरामीशियम में। न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है ऐसे इलॉन्गेशन के द्वारा, वो दिखाई दे रहा है। मैक्रोन्यूक्लियस इलॉन्गेट हुआ, माइक्रोन्यूक्लियस इलॉन्गेट हुआ, कैसे इलॉन्गेट होके 2 बन गए, बीच में फरो आई और ये पूरी ABCD से फेजेस दिखाई गई हैं जिसमें माइक्रो एंड मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। बट माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो माइटोटिक डिवाइड कर रहा है, नो मियोसिस। इसमें रीडुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेल होता है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब ये मल्टीपल फिजन जो हम लोग जानते हैं, सबसे बेटर है एग्जांपल इसका प्लाज्मोडियम। अब जरा गौर करके देखिए मल्टीपल फिजन में क्या होता है, गौर करके बच्चों देखने की जरूरत है। बाइनरी फिजन में क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हुई। यहां क्या है, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी और तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, अर्थात कैरियोकाइनेसिस होती है मल्टीपल टाइम्स और जो न्यूक्लियाई बनते हैं वो पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं और बाद में वो डिवीजन होता है तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में एनिमल के ये कब होती हैं, इस बेसिस पे इनको 3 नाम दिए गए हैं, साइटोगोनी, गैमोगोनी, स्पोरोगोनी। बच्चों ध्यान दो, प्लाज्मोडियम को ही ध्यान दो। प्लाज्मोडियम में साइजोगोनी कब होती है, लीवर में होगी या आरबीसी में होगी। इनको हम क्या बोलते हैं, ए गैमीट्स, अर्थात जो लीवर सेल में गया प्लाज्मोडियम, वहां पे एक न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है मेनी टाइम्स और पेरीफेरी पे लग गया। बाय मल्टीपल फिजन बाद में वो किनारे पे जो पेरीफेरी पे न्यूक्लियाई अरेंज होते हैं वो छोटा छोटा साइटोप्लाज्म लेके साइजोन्स बनाते हैं जो अगेन बर्स्ट करके डिवीजन करते हैं। तो जीवन की इस अवस्था में जो ए गैमीट्स बनते हैं, साइजोन्स बनते हैं, उनको साइजोगोनी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आगे चला, आप ध्यान करिए, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाने होते हैं तो ये गैमीट्स बनाते हैं। एक्स फ्लैजिलेशन होता है, मेल गैमीट बनते हैं और फीमेल गैमीट्स में क्या होता है, पोलर बॉडी बनती है, तो वहां पे इसको गैमोगोनी कहेंगे, ठीक है ना। आप देखिए एक्स फ्लैजिलेशन में 1 से 8 बनते हैं, यानी 1-2 बनेंगे। और स्पोरोगोनी हो गया, आप देखिए मॉस्किटो के अंदर जब पहला मीशियम प्लाज्मोडियम रहता है तो वहां पे जो जाइगोट पहुंचता है, उसके जाइगोट में डिवीजन जब होता है तो वो मल्टीपल बन जाता है, पूरी सेल के चारों तरफ छोटे छोटे साइटोप्लाज्म लेके स्पोर्स बनाता है और उनको हम इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरोगोनी। सो मल्टीपल फिजन हैज डिफरेंट नेम अकॉर्डिंग टू स्टेज व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड। It is produced in the early state before sexual reproduction called agomogony or sizogony, and when it is for sexual producing gametes it is called gamogony, and जब गैमीट के फ्यूजन के बाद स्पोर्स बनने होते हैं तो उसको बोलते हैं स्पोरोगोनी। और हर एक में मल्टीपल फिजन हो रहा है, ये एक गौर करने की बात है। प्लाज्मोटोमी कैसे, एक पीलोमिक्सा बहुत बड़ा अमीबा होता है, ह्यूज, इसे कहते हैं लार्ज अमीबा। ये क्या चल रहा है और कुछ हुआ, चूंकि इसका न्यूक्लियस का थोड़ा हिस्सा चला गया और ये 2-3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया और नए को जन्म देता है, तो इसको हम लोग प्लाज्मोटोमी बोलते हैं। और एक बडिंग हो गया, कुछ एनिमल्स होते हैं उसमें जब न्यूक्लियस का हिस्सा नए जो डॉटर सेल्स होती है उनके साथ जाता है तो उसको हम बोलते हैं बडिंग। और बडिंग कहां पे हो रही है, कितनी हो रही है, उस बेसिस पे ये नाम होते हैं। सिंगल बट को मोनोटोमिक बडिंग कहते हैं, एग्जांपल वर्टिसेला। मल्टीपल गेमेशन, मल्टीपल बडिंग को सेक्टोरिया में पाया जाता है, सिलिएट्स में, इसको पॉलीटोमिक बडिंग कहते हैं।
और एक्सोजेनस बडिंग जब सेल्स के बाहर की तरफ निकलती हैं बड्स, तो उसको बोलते हैं एक्सोजेनस। जो अंदर की तरफ निकलती हैं उनको बोलते हैं एंडोजिनस। सो फॉर्मेशन, नंबर एंड पोजीशन ऑफ बड्स के अकॉर्डिंग budding process can be named for convenient of 4 types. And sexual reproduction, बच्चों ये सबसे ध्यान है, इस पे फुल क्वेश्चन आता है कंजुगेशन पे। ये अभी हम आपको टाइम देंगे, बताएंगे, अभी हम इसकी बिगनिंग कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जरा सा रुक के अगर देखें, मैंने पहले कहा था आपसे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स नहीं बनते हैं, यहां गैमीट्स बनेंगे, मेल फीमेल गैमीट बनेंगे। मियोसिस यहां होगी, वहां मियोसिस नहीं थी। यहां जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वहां नहीं हुआ था। तो यहां पे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द मेंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स, कोई भी फ्लैजिलेट्स और कोई भी नहीं होता है। इन 3 ग्रुप्स में पाया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बीन फाउंड, बिसाइड्स कुछ और होते हैं। सिनगैमी किसे कहते हैं बेटा? देखो, सिन मीन्स कंप्लीट, गैमी मीन्स फ्यूजन। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट पूरा फ्यूज कर जाए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं सिनगैमी। और कॉन्जुगेशन क्या कहते हैं? नो फ्यूजन, केवल न्यूक्लियस इधर का उधर, उधर का इधर गया। तो दोनों में अंतर है। सिनगैमी का नाम ही पड़ा, सिन मीन्स कंप्लीट, गैमी मीन्स फ्यूजन। दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, टोटल्स बोथ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिनगैमी। कितनी तरह का होता है आगे बताते हैं। कॉन्जुगेशन का प्रोसेस, कंडीशन और बेनिफिट्स, 3 अलग अलग हेडिंग्स में मैं इसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले आइए क्विक बात करते हैं सिनगैमी। सिनगैमी के कई नाम दिए गए हैं साइंटिस्टों ने। होलोगैमी पूरा का पूरा, पीडोगैमी छोटा बच्चा है वही जब फ्यूज कर गया, आइसोगैमी देखने में दोनों एक हो, एनाइसोगैमी जब शेप अलग अलग हो बट एक ही स्ट्रेन हो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बड़ा। तो ये नाम दिए गए साइंटिस्टों ने बुक्स में, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जिक्र करना हमें आपको जरूरी था। मेन सिनगैमी मालूम होना चाहिए जो वॉटिसेला में पाई जाती है। होलोगैमी कंप्लीट फ्यूजन देखिए हुआ, कोई नहीं, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म दोनों फ्यूज कर गए, बाद में सिस्ट बन गई। कॉप्रोमोनास में, ऐसे एक्टोनोफिलिस में भी पाया जाता है। पीडोगैमी बच्चे 2 बने वही फ्यूज कर गए, मेन था सेल, उससे डिवाइड हुए, आपस में फ्यूज कर गए। कॉन्जुगेशन, बच्चों आप लोग ये नोट कर सकते हो, इसको हम धीमे धीमे बताएंगे। कॉन्जुगेशन इज ए टेम्परेरी पेयरिंग ऑफ 2 इंडिविजुअल, 2 पैरामीशियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जब आपस में जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेंट्स। जब अलग हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? एक्स कॉन्जुगेंट। सो कॉन्जुगेशन इज ए टेम्परेरी पेयरिंग ऑफ 2 इंडिविजुअल्स कॉल्ड कॉन्जुगेंट्स that separate after mutual exchange of male pronucleus। क्या है? मेल प्रोन्यूक्लियस एक दूसरे में जाता है, फीमेल वहीं रहता है। अगेन conjugation is a characteristic feature of all the ciliates। पैरामीशियम वर्टिसेला में खास पाया जाता है। पैरामीशियम आपको पढ़ाया जाता है। इन पैरामीशियम द conjugates are first fused, प्रोसेस होता है, बाद में दे आर सेपरेटेड। इन वर्टिसेला टू 2 conjugates अलग अलग शेप के होते हैं। लार्ज वाला मैक्रो कॉन्जुगेंट्स कहलाता है, छोटा माइक्रो कॉन्जुगेंट्स कहलाता है। तो माइक्रो कॉन्जुगेंट्स वर्टिसेला में मर जाता है, लेकिन हम आपसे पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम इसको समरी फिर से कहें तो कॉन्जुगेशन इज ए टेम्परेरी पेयरिंग ऑफ 2 इंडिविजुअल्स फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई, thereafter they separate। now what are the condition and what are the factors जब conjugation होगा? ऐसा नहीं है कि एनिमल जब चाहे तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, conjugation नो। पैरामीशियम जब खाना अच्छा मिलता है तो एक सेक्सुअली डिवाइड करता है। जब खाना अच्छा नहीं मिलता है अर्थात इट डज नॉट अकर अंडर फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब एनिमल प्रोन होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अर्थात वो कौन कौन सी अनफेवरेबल कंडीशन हो सकती है? इट कैन बी स्टारवेशन, खाना ना मिलना, सर्टेन केमिकल्स, पर्टिकुलर फूड, ये सब कंडीशन होती है एनिमल को इंड्यूस करती है कि कॉन्जुगेशन करे।
ऐसा कहते हैं। सर्टेन टेम्परेचर भी होना चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर होगा तो भी कंजुगेशन नहीं होगा। लाइट इज एसेंशियल फॉर कंजुगेशन, डार्कनेस में नहीं होता है। प्लस कंजुगेशन का ड्यूरेशन करीब कहते हैं 18 से 24 घंटे होता है। एक एनिमल पेयरिंग किया और 18 घंटे रहता है। अक्सर हम लोग लेबोरेटरीज में इसका कल्चर दिखाते हैं। ब्यूटिफुल पेयर्ड एनिमल्स कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। सो कंजुगेटिंग इंडिविजुअल्स आर यूजुअली स्मॉलर। एक पैरामीशियम कॉर्डेटम का साइज क्या होता है? 300 से 350 माइक्रोन, और ग्रोथ होती जाती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। और जो कॉन्जुगेटिंग इंडिविजुअल्स होते हैं वो बहुत बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका साइज जब छोटा हो चुका है तब वो जाके रेडी होते हैं कॉन्जुगेशन के लिए। बल्कि एक हमारे ITRC से रिसर्च की थी, उन्होंने बताया था जैसे हम लोगों में बाल्यावस्था, युवावस्था, पौर्णावस्था होती है, उसी तरह से इन प्रोटोजोन्स में भी नंबर ऑफ रिप्रोडक्शन शुरू में 3-4 होते हैं पर डे, फिर 2, फिर 1, और फिर बाद में सेनेसेंस, पैरामीशियम खत्म हो जाता है। व्हाई? बिकॉज एजिंग पिगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस एनिमल्स, ऐसा कहते हैं। आइए, डॉक्टर मॉपस ने रिपोर्ट किया था कि जो कॉन्जुगेशन होता है वो कभी भी सिंगल सेल लाइन में नहीं होता, जिसको हम क्लोनल कल्चर कहते हैं। अर्थात conjugation never takes place among the member of pure cell line, जिसको क्लोनल कल्चर कहते हैं। किसमें होता है? मेटिंग टाइप्स में होता है। इट अकर्स बिटवीन मेटिंग टाइप। प्लाज्मोडियम कॉर्डेटम के करीब आप समझिए 18 मेटिंग टाइप्स है, 18 दूना 36 पेयर्स बनते हैं इसमें। मेटिंग टाइप्स का मतलब 2 इंडिविजुअल मिला के एक बनता है। एंड व्हाट इज मेटिंग टाइप्स? मेटिंग टाइप्स ऑफ एन एनिमल्स आर जेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली सेम। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल मेकअप अलग होता है। आप लोगों ने इसमें पढ़े होंगे, पैरामीशियम में शायद कुछ पढ़ाया गया, छोटे छोटे वो कुछ ग्रेन्स पाए जाते हैं। अभी देखिए, नाम ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगा। तो मोटा मोटा बात समझे, कंजुगेशन की कुछ फैक्टर्स, कंडीशन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फेवरेबल कंडीशन नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, स्टार्वेशन, केमिकल वगैरह ऐसा होना चाहिए। और मेन बात क्या है, प्योर लाइन में नहीं होता है, अपोजिट मेटिंग टाइप्स में। सिग्निफिकेंस, इसका फायदा क्या है? ये कायदे से हमें प्रोसेस के बाद बताना था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जब भी कॉन्जुगेशन होगा मैक्रोन्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। मैक्रोन्यूक्लियस का काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, और माइक्रोन्यूक्लियस का काम होता है जो नए मैक्रोन्यूक्लियस को जन्म देगा। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है? रिजुविनेशन, पुनः शक्ति प्राप्त करना। अर्थात एक बार वो कितने बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर चुका है, बट बाई continuous repeated asexual reproduction, paramecium loses its power, its vigor, and to rejuvenate, restore its lost power, it has to conjugate. तो rejuvenation अर्थात पुनः शक्ति मिलती है conjugation से। दूसरा क्या है? nuclear reorganization. During conjugation, nuclear materials is reorganized because एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही मैक्रोन्यूक्लियस बार बार डिवाइड होकर चला जाता है, और कॉन्जुगेशन में मैक्रोन्यूक्लियस खत्म हो जाता है, नया बनता है। और इससे क्या होता है? जब म्यूचुअल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हेरिडिटरी वेरिएशन भी हो रहा है। अर्थात एक ही जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहा है, थोड़ा फर्क होता है। अर्थात ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ पेरेंट passes unchanged into the progeny daughter cells, and all the members of progeny have same inheritance. But conjugation, it ensures inherited variation, blending of 2 genetic lines common. तो ये conjugation के process है। आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। बच्चे जरा सब ध्यान दें पहले, तब हम इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, जो उनको दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने जो डायग्राम दिखाया है, ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 पहली रो में, फिर दूसरी रो में कंबाइंड चल रहा है। नीचे देखो, सबसे नीचे लिखा है 7 8 9 10 से 14 तक। तो सबसे पहले बच्चों अगर ध्यान दें 1 नंबर पे, तो 2 इंडिविजुअल्स ने पेयर किया, इनको हम कॉन्जुगेट्स कहते हैं। और जो बड़ा वाला मैक्रोन्यूक्लियस है, छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियस है। पहली नोट करने वाली बात है, मैक्रोन्यूक्लियस विल डीजनरेट। काला जो बड़ा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, देखो आगे 2 3 4 में वो चला गया। अर्थात
पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, मैक्रोन्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। दूसरा, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड 2 टाइम्स, 1 से 2, 2 से 4, और मियोटिक, पहला डिवीजन मियोटिक होता है, अर्थात एक दूसरे डायग्राम में 2 डॉटर न्यूक्लियाई और देखिए लिखा हुआ 4 के नीचे 4 माइक्रोन्यूक्लियाई। और अभी जब से अपना राज्य एक माइक्रोन्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, पहला मियोटिक होता है, 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनते, दोनों के 3 डीजनरेट हो गए। आप डायग्राम नंबर 4 में देखिए, कम से कम 3 डिजनरेट होते दिखा रहे, नीचे लिखा हुआ है 3 डिजनरेटिंग न्यूक्लियस, उसके टॉप पे लिखा हुआ है 4 न्यूक्लियस उससे पहले थे। डायग्राम 5 में आइए तो मेल जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो इधर से उधर जा रहा है, अर्थात दोनों पेयर बनाए हुए म्यूचुअल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फीमेल इज ए स्टेशनरी, ठीक। तो अब क्या हुआ, छठे में देखिए मेल जाके फ्यूज हो गया और क्या बना, जाइगोटिक न्यूक्लियस बन गया। तो 1 से लेकर 6 को हम फिर से समरी दे रहे हैं। मैक्रोन्यूक्लियस विल डीजनरेट 1, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस विल डिवाइड 2 टाइम्स टू प्रोड्यूस 4 न्यूक्लियाई, फर्स्ट डिवीजन मियोटिक होगा। 4 में से 3 डिवाइड डीजनरेट कर गए, बचा 1 2 में डिवाइड करेगा, इन ए वे टू मेक 1 मेल 1 फीमेल न्यूक्लियस। दोनों का मेल दूसरे में क्रॉस कर जाता है, म्यूचुअल फर्टिलाइजेशन कहता है, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों अलग हो जाएंगे, ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं जाइगोट को लेके अलग हो गए। और डायग्राम नंबर 7 बॉटम पे आइए, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे 2 एक्स कॉन्जुगेट्स, ऊपर और नीचे, ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी, किसी एक को देखिए, दोनों में सेम प्रोसेस चल रहा है, दोनों में जाइगोट बन गया है। अब क्या होगा, ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये माइटोटिक 3 बार डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 में से 4 मैक्रोन्यूक्लियस हो जाते हैं, 4 माइक्रोन्यूक्लियस। और करके देखिए डायग्राम 11, डायग्राम 11 में 10 में दिखाया गया 8 न्यूक्लियस बन गए, लिखा है ऊपर 8 न्यूक्लियाई। 11 में देखिए 4 बड़े तो ऐसे रहते, 3 छोटे डिजनरेट कर गए। अब यहाँ पे जो एक छोटा बचा है ये 2 बार डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे और हर बार छोटा छोटा मैक्रोन्यूक्लियस ले जाएगा। इस तरह से 1 से कितने इंडिविजुअल्स बनेंगे, 4, अर्थात 2 कॉन्जुगेट्स डिवाइड करके 8 एनिमल्स को जन्म देते हैं। और इस तरह से ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस पूरा होता है। And this is what we call conjugation। तो बच्चों ये ध्यान देने की बात है, वो अनिल कपूर एक गाना गाता था 1 2 का 4 4 2 का 1, तो ये पैरामीशियम भी कर रहा है 1 2 का 4 4 2 का 1, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इस तरह से पूरा होता है। आई फील इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यही प्रोसेस एक इस डायग्राम में भी दिखाया गया। देखिए डायग्राम फर्स्ट, इसमें जो बैंगनी का 2 अलग अलग कलर के न्यूक्लियस दिखाए गए, मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा, माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, 4 बने, फिर आगे चल के 2 कलर, एक के बॉडी के अंदर 2 बनते हैं, पर्पल एंड ब्लू, दोनों डिवाइड करके जाइगोट बन गए। जाइगोट के बाद प्रोसेस 4 में देखिए 8 के बाद 5वें देखिए 4 बड़े 4 छोटे, 3 जनरेट कर गए, 3 के बाद जो 1 बनता है प्रोसेस होता है। तो दूसरा डायग्राम है, ये मैंने आपको दिखाया। अब आइए कुछ बात करते हैं डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शन जो प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। ऑटोमिक्सिस, ऑटो मीन सेल्फ, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट सेल्फ से बने उसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी, अर्थात दिस इज द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोन्यूक्लियाई मेल एंड फीमेल फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। अभी हम इसका आपको डायग्राम दिखाएंगे, एक ही इंडिविजुअल से मेल फीमेल न्यूक्लियस बना, वही हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये पैरामीशियम ऑरेलिया में पाया जाता है। एंड बच्चों ये ध्यान देने की बात है, पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक बड़ा एक छोटा न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो एक माइक्रो न्यूक्लियस, ऑरेलिया में एक बड़ा 2 छोटे होते हैं हमेशा। पीडोगैमी, जब फ्यूजिंग इंडिविजुअल्स आर डॉटर, दे आर कॉल्ड पीडोगैमी। एंडोमिक्सिस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और वो केवल क्या है, न्यूक्लियस थोड़ा सा चेंज होता है। और फिर देन अदर प्रोसेस दिए गए, रीजनरेशन, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यदि चला जाएगा किसी बॉडी के पार्ट के साथ तो वो रीजनरेट करेगा। पार्थेनोजेनेसिस आपने सुना है, कुछ प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन डेवलपमेंट इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स अकर्स, इट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। प्लाज्मोटोमी भी इसी तरह का एक फिनोमेना है। तो आइए हम आपसे बात करते हैं ऑटोमिक्सिस और एंडोमिक्सिस की बात करते हैं डायग्राम के द्वारा।
ये देखिए ऑटोगैमी, अगर आप डायग्राम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1, आप देखिए ये एनिमल पहले पी आरेलिया में हमेशा 2 माइक्रोन्यूक्लिया 1 मैक्रोन्यूक्लियस होता है, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। शुरू में मैंने आपको बताया था मियोसिस होना, फर्टिलाइजेशन होना, जाइगोट का बनना यदि हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट चूंकि गैमीट एक ही पेरेंट से बन रहे हैं इससे इसको बोलते हैं ऑटोगैमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो गौर करके देखिए मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट हो गया, 1 से 4 तक पहुंचते पहुंचते देखिए मैक्रोन्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, जो माइक्रोन्यूक्लियस से 2 बार डिवाइड करता है और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, अर्थात 2 से 4, 4 से 8 बने। और यहां पे जो 8 बने, उधर जो 8 बने थे अलग अलग, जिसमें से 3 इधर 3 उधर चले जाते थे, 6, यहां 7 डिजनरेट हो गए, बचा केवल 1। अब आप देखिए मियोसिस हो गई, 1 न्यूक्लियस बचा, ये 1 2 में बट चला गया, तीसरा देखिए डायग्राम, और ये जो 3 में से 1 जो है मेल एक फीमेल गैमेटिक न्यूक्लियाई का काम करता है और इनका फ्यूजन हो गया, अर्थात जाइगोटिक न्यूक्लियस बन गया। 4 में ऊपर देखिए, तो मियोसिस का होना, गैमेटिक न्यूक्लियाई का बनना, फर्टिलाइजेशन का होना, जाइगोट का बनना 1 से 4 तक प्रोसेस में हो गया, इससे हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब जो 4 के आगे देखिए, 1 न्यूक्लियस जो जाइगोटिक बना, ये माइटोटिक डिवाइड किया 2 बार, 4 सेल बनी डिप्लॉयड, जिसमें से 2 माइक्रो होती है, और माइक्रो सेल 1 बार डिवाइड करेगी तो 2 छोटी 1 बड़ी बनती है। इस तरह से एक एनिमल से 2 एनिमल्स का जन्म होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोगैमी। कुछ एनिमल 10,000 में 5-10 में ऐसा साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया है, ये जो रिनाउंड प्रोटोजोलॉजिस्ट है उन्होंने टेक्स्ट में इसका जिक्र किया है, इससे इसको समझाना जरूरी था। आइए इंडोमेक्सिस की बात कहते हैं। दिस इज नॉट ए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ध्यान करके देखिएगा, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। यहां ना गैमीट्स बनेंगे, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और खाली न्यूक्लियर मटेरियल होगा। अब देखिए डायग्राम नंबर 1 ऊपर मैक्रोन्यूक्लियस खत्म हो रहा है, तीसरे डायग्राम तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया, तो वो एक प्रोसेस तो हुआ। लेकिन आप देखिए 2 जो माइक्रोन्यूक्लियाई थे ये डिवाइड हुए, कितने बने? 4, फिर एक और डिवाइड हुआ, बने 8, और कोई मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ। ये माइटोटिक डिवीजन है, ध्यान देने की बात है। और जो 8 में से 6 डिजेनरेट कर गए, 3 इधर के 3 उधर के, बचे क्या? 1 न्यूक्लियस। आप देखिए 1 इधर 1 उधर बचा हुआ है। अब ये 1 न्यूक्लियस एज सच है, कोई मियोसिस नहीं हुई, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहीं पे साइटोकाइनेसिस हो गई। आप देखिए डायग्राम 5 में साइटोकाइनेसिस हो गई, 1 इधर चला गया 1 इधर, 1 न्यूक्लियस से डिवाइड होके 2 बार माइटोटिक 4 न्यूक्लियाई बने, जैसे पीछे दिखाया था 4 को बड़े 6। डायग्राम नंबर 7-8 में देखिए, आगे चलते 1 से 2 इंडिविजुअल नहीं 4 इंडिविजुअल्स का जन्म होता है। तो इन दिस होल प्रोसेस ये भी करीब 10-20 हजार एनिमल में 1-2 पाए जाते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये एक समझने की चीज है। और ये वर्मा जी एक अगर बीच में एक आप कहें तो 20-25 मिनट में क्विकली ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में इनको संदेश देना है। नहीं ठीक है सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छा सर। तो मैं ये 2 फेजेस तो मैंने प्रोटोजोआ की जनरल बातें जो थी, कुछ रिसर्च की, कुछ न्यू डेवलपमेंट शेयर किए, रिप्रोडक्शन। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोटोजोआ एंड डिजीज। बच्चों करीब 25 ऐसे पैरासिटिक प्रोटोजोन पाए जाते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज। हमें तो नहीं नजर आता है कोई ऐसा इंसान भी होगा जिसको कभी ना कभी प्रोटोजोआ से बीमारी न हुई है। आइए एक नजर डालें होने वाली बीमारियों पे। लेफ्ट साइड में टेबल ए में देखिए पायरिया डिजीज होती है। पायरिया माउथ के गम्स के नीचे जो जर्म्स होते हैं वो 2 एनिमल्स होते हैं, एंटीमीबा जिंजीवेलिस नॉन सिस्ट फॉर्मिंग अमीबा होता है, और एक ट्राइकोमोनास टिनेक्स, ये फ्लैजलेट होता है। यहाँ पे जो खाना रह जाता है दांतों के नीचे, वहां पे ये खाने पे और बैक्टीरिया पे फीड करके सेल्स को डैमेज करता है। ये पायरिया डिजीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे एग्रीवेट द डैमेज एंड एज सच दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरिया। और ट्राइकोमोनास टिनेक्स की एक स्पीसीज ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस है जो बच्चों में यूटीआई इंफेक्शन कॉज करती है। और बच्चों ये जो बीमारी डिसेंट्री बहुत कॉमन है,
हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा है पेचिस की बीमारी, जिसका पहला लक्षण है खूनी पेचिस अर्थात ब्लड म्यूकस आना और आंव गिरना। तो इसमें क्या होता है, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसका नाम ही पड़ा। देखिए साइंस में नाम ऐसे नहीं रखे जाते हैं। एंटमीबा, एंट मीन्स इंटेस्टाइन, अमीबा मतलब अमीबा, एंटमीबा का मतलब अमीबा ऑफ इंटेस्टाइन, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लाइटिका मीन्स लाइसिस डैमेज, अर्थात ए अमीबा ऑफ इंटेस्टाइन कैपेबल ऑफ कॉजिंग लाइसिस डैमेज टू टिश्यू इज कॉल्ड एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये हम लोग की कोलन में पाया जाता है और कोलन की सेल्स में ये डैमेज करता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स करके, और वो डैमेज जब ज्यादा डीप हो जाता है तो अल्सर्स बन जाते हैं और अंदर चला जाता है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड आने लगते हैं, अमीबा वहां पे मल्टीप्लाई करता है। और कभी कभी ये सेकेंडरी इंफेक्शन लीवर में भी कॉज करता है, जिसको हम लोग हिपैटिक अमीबियासिस या सेरेब्रल अमीबियासिस भी बोलते हैं। तो डिसेंट्री के लिए बड़ी कॉमन दवा है मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, इसके नए नए कॉम्बिनेशंस आ गए, बच्चों को पूछ के लेनी चाहिए, लेकिन हाथ की सफाई रखनी चाहिए। इसमें क्वाड्री न्यूक्लियस सिस्ट होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जाता है। डायरिया बीमारी जो होती है लूज मोशन बैक्टीरिया के द्वारा तो होता ही है, जो आजकल मोस्ट कॉमन है। जियार्डिया एक फ्लैजिलेट है, इससे डायरिया होता है। बैलेंटिडियम कोलाई ये पिग्स में भी पाया जाता है, इससे भी होता है। और एक है आइसोपोरा होमनिस, ये भी डायरिया कॉज करता है, इसमें लूज मोशंस होते हैं। ये डायरेक्ट टिश्यू डैमेज नहीं करते हैं, लेकिन लूज बाउल्स होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, एंड डायरिया से माइक्रोन्यूट्रिएंट वाटर लॉस होता है। डायरिया बहुत कॉमन है। देखिए जहां पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, गंदी बस्तियों में, ऐसी जगह पे, बांग्लादेश में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में डायरिया से बहुत से बच्चे मरते हैं, वो चाहे बेसिलरी डायरिया हो चाहे प्रोटोजोल डायरिया हो। बच्चों हमने अभी सीरी में तुम लोग को बताया था ट्रिपैनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। थैंक गॉड दिस डिजीज इज कन्फाइंड ओनली टू अफ्रीका। 3 इसकी स्पीसीज है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियन। मेन इसका स्टॉक है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई, सब स्पीसीज हो गया ब्रूसियाई गैम्बियस, ब्रूसियाई रोडेशियन। तो ट्रिपैनोसोमा की ये बीमारी सीसी फ्लाई ग्लॉसिना पेल्पेरिस ग्लॉसिना मार्सिटेलिस के द्वारा फैलती है और ब्लड में पैरासाइट रहता है, मल्टीप्लाई करता है, उसको ग्लूकोज ब्लड में मिलता है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है, धीमे से वो ब्रेन में चला जाता है, हर जनरेशन में अपने सोमैटिक एंटीजन चेंज करता है और कैमोफ्लेज करके ये पेशेंट वहां पे ऐसे ही इम्यूनिटी वीक होती है। पेशेंट ट्रिपैनोसोमा से बीमार होने की वजह से, हैवी एंटीजन की वजह से दिल में भी बीमारी होती है, इम्यूनोलॉजिकली वीक हो जाता है, उसको और बीमारियां होने लगती हैं, एंड सच पेशेंट वेरी क्विकली डाई। काला जी, यस बोलो बच्चों, वैसे पूरा पढ़ाते तब बताते, बोलो पूछो। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑटोगेमी आप बताए हैं, हाँ, उसमें सर एक ही इंडिविजुअल, मतलब सेम एक ही इंडिविजुअल के 2 ऐसा बेटा देखो धर्मेंद्र, ऐसा करो धर्मेंद्र, ऐसा करो लेक्चर कंप्लीट होने दो, पहले लेक्चर कंप्लीट करने तुम्हारा ये सवाल नोट करना, हम बताएंगे तुम्हें जो ऑटोगेमी होती है वो कैसे होती है, इसको हम रिपीट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं। कालाजार लीशमानियासिस बीमारी से होता है, इसकी बहुत स्पीसीज पाई जाती है। लीशमानिया ट्रॉपिका स्किन डिजीज कॉज करता है, लीशमानिया और ब्राजीलियंसिस इप्सुंडा कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कालाजार दोनों बनाई, पेट आगे निकल आता है, ये बिहार बंगाल वगैरह में पाई जाती है और इसके लिए एंटीमेनिक दवाएं वगैरह दी जाती है। इसका जो पैरासाइट है उसको हम लोग बोलते हैं सैंड फ्लाई, फ्लीबोटोमस पेपिटिसाई कहते हैं, और बच के रहना चाहिए, इसके लिए भी बड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स होता है। अभी मैंने सुबह ऊपर आपसे जिक्र किया पायरिया की एक स्पीसीज ट्राइकोमोनास टिनेक, इसकी स्पीसीज बच्चों में यूटीआई इन्फेक्शन होता है, ट्राइकोमोनास विजाइनलिस बोलते हैं। और एक अभी मैंने आपको शुरू में बताया था माइक्रोस्पोरा, वहां पे मैंने जिक्र किया था नौसिमा की। नौसिमा की 3 स्पीसीज होती है, नौसिमा बोम्बिसिस पेब्रिन डिजीज कॉज करता है। जब लुईस पाश्चर 17वीं शताब्दी में थे, फ्रांस में ही रिसर्च था और कहीं पे और सिल्क था ही नहीं, तो सेरिकल्चर फ्रांस में खत्म हो गया इस पैरासाइट की वजह से, माइक्रोस्पोरन पैरासाइट की वजह से, पेब्रिन डिजीज, जिसको कि लुईस पाश्चर ने पता किया। एंड नौसिमा इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। Nosema bombycis causes pebrine disease in silk worm, Bombyx morai में,
Nosema causes apiculture में disease, Nosema apis, and Nosema is a hyper parasite. A parasite parasitizes another parasite is called hyper parasite species हुआ Nosema anopheles. Anopheles mosquito होता है. मलेरिया 4 स्पीसीज से होता है. वाइवेक्स माइल्ड हो गया, ओवेल, फैल्सीपेरम मैलिग्नेंट होता है. और मलेरिया जो है वो केवल एक ऐसा पैरासाइट है जिसमें रिकरेंस ऑफ फीवर चौथे दिन होता है, इसलिए इसको क्वार्टर मलेरिया बोलते हैं. क्वार्टर मलेरिया मलेरी, मैलिग्नेंट मलेरिया फैल्सीपेरम, बाकी ओवेल मलेरिया और वाइवेक्स हो गया बिनाइन. टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई ये वेटरी डिजीज है, पाई जाती है एनिमल्स में. डिसेंट्री बैलेंटीडियम से भी होती. मैंने आपको बताया कि बैलेंटीडियम कोलाई हमने लेफ्ट साइड में जिक्र किया था. ये एक नई बीमारी है जिसमें बाय द वे मैंने काम किया है. मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय निग्लेरिया. एक ऐसा अमीबा होता है जो फ्लैगेलेट में कन्वर्ट कर जाता है. मोर्टिलिटी इसमें 100% है, लेकिन चूंकि बहुत जो लोग गंदे पानी में तैरते वगैरह हैं वहां से होती है. बट मैक्सिमम जो मेनिंजाइटिस के केसेस है वो जेईई से, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, वो वायरस है. तो ध्यान देने की बात यह है बच्चों, हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग अपनी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, विविध बीमारियों के बारे में जानते हैं. तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हम इन चीजों को समझें, सो दैट वी कैन एजुकेट अवर नियर एंड बाय कि कौन बीमारी कैसे होती है. तो मेनिंजाइटिस की बात करें, मेनिंजाइटिस कैन बी वायरल, मेनिंजाइटिस कैन बी बैक्टीरियल, मेनिंजाइटिस कैन बी प्रोटोजोअल. तो सबसे पहले जब कोई बीमारी होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स, और आजकल तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट चल गए, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं, अमीबा एक है जो केरेटाइटिस भी डिजीज कॉज करता है, एंड ऐसे ही क्रिप्टोस्पोरियोसिस भी है. तो ये मैंने आपसे कुछ कॉमन बीमारियों का जिक्र किया. आप सभी जानते हैं मलेरिया मनुष्य की बहुत बीमारी है. WHO लॉट ऑफ पैसा खर्च कर रहा है, अभी भी मलेरिया से निजात नहीं मिला है. मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है. दूसरी बीमारी कालाजार इंडिया में है. डिसेंट्री, डायरिया, ये भी बहुत ज्यादा ऐसी इसकी प्रॉब्लम है. और ट्रिपैनोसोमिया थैंक गॉड इंडिया में नहीं है. तो ये रही, मैंने बात करी. वर्मा जी अब ये प्रश्न पूछ ले, फिर हम इनको एक 10 मिनट का मैसेज देंगे, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ बिसाइड आफ्टर स्टडी. नहीं ठीक है सर, ओके सर. हाँ बेटा बोलो, तुम क्या सवाल पूछ रहे थे बच्चे? हेलो. हाँ सर. किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पहले आप माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाए तो माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए. ठीक है सर. ये ऑटोगेमी किसी ने पूछा था, मैं बता रहा हूं. देखो इसमें ऑटोगेमी में क्या हुआ, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहेंगे कि इसमें गैमीट बना, मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट न्यूक्लियस बना, इसलिए कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आप डायग्राम में देख रहे हैं मैक्रो न्यूक्लियस खत्म हो गया, माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड 2 था, 2 डिवाइड 8 बने. पहला मियोसिस था, देखिए लिखा हुआ लेफ्ट साइड में मियोसिस, और उसके बाद 8 में से जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक ही बचा, 7 डिजेनरेट हो गए. एक बाद में माइटोसिस से 2 बनाता है, और 2 जो न्यूक्लियस है जाइगोट जिसको बोलते हैं आपस में फ्यूज हो गया. तो मियोसिस हुई, गैमेटिक न्यूक्लियस बना, जाइगोट बना, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऐसा नहीं कि ढेर सारे एनिमल यही करते हैं. 10,000 एनिमल में 1-2 एनिमल्स को पाया गया, वो ऐसे भी मल्टीप्लाई करते हैं. ये एक बहुत अच्छी सी पैरामीशन की किताब है, उसमें लिखा हुआ है, टेक्स्ट में इसका जिक्र आता है. इसलिए इस प्रोसेस को मुझे लगा बच्चों से शेयर करना चाहिए. इट हैज ओनली रिपोर्टेड इन पैरामीशियम ऑरेलिया. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर इंडिविजुअल एक ही होता है सर, सेम इंडिविजुअल होते हैं. कुछ इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, सब में नहीं. सपोज करो कोई लेबोरेटरी में स्टडी कर रहा है, 10,000 एनिमल में 1-2 एनिमल्स में दिखाया गया कि ये डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जब रिपोर्ट किया गया, इसका टेक्स्ट में जिक्र आया, तो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं. क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं? व्हाई? बिकॉज देयर वाज मियोसिस, देयर वाज गैमीट फॉर्मेशन, देयर वाज जाइगोट. As such, it is called sexual reproduction, but endomixis is not called sexual reproduction. It was only nuclear reorganization. Is it clear? Thank you, sir. Thank you. आपको थोड़ा सा लाइटर नोट पे ले जा रहे हैं बच्चों, और हम आपको कुछ थोड़ा नई चीज दिखाने का बात कोशिश कर रहे हैं. ये बात करते हैं. हाँ, ये आ गए.
यस, तो आप हल्के हो जाइए बच्चों। आई वॉन्ट टू गिव यू सम फूड फॉर थॉट, कुछ सोचने के लिए आपको दे रहे हैं। अभी तक तो आप क्लास में पढ़ रहे थे कि एक पढ़ना है, और कुछ हम वो बात कहेंगे जिसपे मनन करिएगा, जो जिंदगी में आपको आगे सफलता के दौर पे ले जाएंगी। और इस बात को आगे लेने के लिए मैं एक वर्ड ऊपर लाए हैं हम, क्राई। व्हाट इज क्राई? हिंदी में कहते नहीं, क्राई करना मतलब रोना। तो एक अमिताभ बच्चन का गाना है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं बेटा। गांधी जी ने कहा था एंगर इज ए नेगेटिव वर्ड, रोना इज ए नेगेटिव वर्ड, बट इफ एंगर कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस वी कैन डू एनीथिंग। गांधी जी ने अपने गुस्से को ऐसे यूज किया आंदोलन करके कि उन्होंने देश को आजादी दिलाई। तो यहां पे मैं जो क्राई आप रोना समझ रहे हैं, मेरा क्राई दूसरा है। इसको पॉजिटिव नजरिए से देखिएगा तो ये आपको जिंदगी में सफलता दिलाएगा। मेरा इस क्राई का तात्पर्य है C फॉर कम्युनिकेशन, R फॉर रिहर्सल, I फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अर्थात अगर आप में ये क्राई आ गया तो आप जिंदगी में सफल होंगे। आइए कैसे सफल होंगे, इन 3 चीजों की महत्ता हम आपसे शेयर करते हैं 10 मिनट के अंदर। C फॉर कम्युनिकेशन। बेटा ये मान के चलो कि जिंदगी में कम्युनिकेशन की बड़ी महत्ता है, लेकिन हम लोग के समाज में है क्या, अक्सर घर में पड़ोस में लोग देखते हैं और बच्चों को कोसते हैं, डिस्करेज करते हैं कि हाउ एवर एबल, कैपेबल, नॉलेजेबल यू आर, द फैक्ट इज यू आर अनएम्प्लॉयबल। बड़ा खराब बात है। बच्चे, जरूरी थोड़ी ना है कि सबको तुरंत नौकरी मिल जाए। बच्चों को हौसला अफजाई करनी चाहिए, धीमे धीमे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बात क्या है, इफ दे आर एबल, कैपेबल, नॉलेजेबल एंड कम्युनिकेबल, अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते हैं, दे आर एम्प्लॉयबल। सो प्रॉब्लम इज नॉट लेस ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी, मोर ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। मेरे एक मित्र हैं इंडस्ट्री में, वो बोलते हैं शर्मा जी मैं इंटरव्यू लेने जाता हूं, 100 में से 99 बंदे ऐसे नहीं मिलते जो काम के, एक बंदा मुश्किल से मिलता है जो अपनी बात कह पाता है। तो कम्युनिकेशन क्या है, आज को 3-4 स्लाइड के जरिए मैं आपसे बताऊंगा। और हर बच्चों को आना चाहिए। हमारी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था पूरी, बच्चे का चेहरा नहीं देखा जाता है, क्या लिखता है उसके नंबर दे दिए जाते हैं, और एक क्रेडिट कार्ड पास फेल का दे दिया जाता है। बच्चे को कम्युनिकेशन सुधारना चाहिए, कैसे छोटी एप्लीकेशन लिखनी है, कैसे अपनी बात कहनी है, ये आना चाहिए। कम्युनिकेशन की अहमियत को आगे बढ़ाते हैं। कम्युनिकेशन क्या है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, हम इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन की अगर हम देखें गौर करके, कम्युनिकेशन इज बोथ आर्ट एंड साइंस। और अगर हम जिंदगी में देखें 70% प्रॉब्लम जो है किसी समाज में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पे, वो क्या है, बिकॉज ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। हम अपनी बात कह ही नहीं पाते और वहां पे फिर उलझाव होता है। और सफलता की बात देखें, इफ द कम्युनिकेशन इज क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कॉम्प्रिहेंसिव, सारी चीजें हैं। और उसके साथ यदि कम्युनिकेशन में कर्टसी झलकती है, कहीं ना कहीं विनम्रता झलकती है, तो उसको एक सबल मिलता है, आदमी सफल होता है। तो जरूरी इस बात की है कि हर बच्चे को अपनी बात सरलता से, सहजता से और सशक्त अंदाज में कहना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन की जिंदगी में अहमियत है। कल अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज घड़ी रख के देखिए कि हम क्या सवाल 20 मिनट में लिख पाते हैं कि नहीं, उसको जांचिए, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन इज बोथ पॉसिबल बाय राइटिंग, बाय ओरल, बाय एवरीथिंग। कम्युनिकेशन के लिए एक कोट कहा गया है, आई हियर आई फॉरगॉट। मैं सुनता हूं, भूल जाता हूं क्लास में, बट जब हम देखते हैं, जैसे मैं इससे आप पिक्चर देख रहे हैं, मैं विजुअल का सहारा ले रहा हूं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन यही काम यदि हम आपसे कुछ कराएं, साइंस में हम लोग डिसेक्शन कराते हैं, तमाम एक्सरसाइज, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैनॉट बी परफेक्टेड, इट कैन बी इम्प्रोवाइज्ड ओनली बाय वे ऑफ प्रैक्टिकल एंड रिहर्सल्स। ये क्लास में मैंने मैसेज दिया, ये मेरे गुरुजी का मैसेज है। ब्रेवो कहते हैं जब कोई क्रिकेट में छक्का लगता है, फुटबॉल में गोल हो जाता है,
तो हाथ उठा के कस के बोलते हैं ब्रेवो। यहाँ पे हमारी एजुकेशन में इसका तात्पर्य है, ब्रैकियम मीन्स हाथ जिससे हम लिखते हैं, ऑडिशन मीन्स कान जिससे हम सुनते हैं, विजुअल मीन्स आई जिससे हम देखते हैं, ओरल मीन्स माउथ जिससे हम बोलते हैं। जब हम अपनी पढ़ाई में अपनी सारी इंद्रियों को आत्मसात कर देते हैं तो ब्रेवो की स्थिति आती, काम अच्छा होता है। तो विवेकानंद जी ने कहा था, इफ यू पुट योर ऑल दी एनर्जीज इनटू ए स्मॉलेस्ट एक्ट यू विल एक्सेल। छोटा से छोटा काम करें, पूरा तन्मय होकर करें, वो काम उत्कृष्ट होगा। ये जानना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन पे हम बहुत लंबी बात कह सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की अहमियत है ये आप जानते हैं। दूसरा है रिहर्सल, रियाज, प्रैक्टिस। आप लोग जो करते हैं डिसेक्शन में प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ चित्र में आपको कई प्रोफेशंस दिखाए हैं। डॉक्टर हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, सर्जरी, स्विमिंग, ये जितने प्रोफेशन में एक्सेल लोग किए हैं जो आपके सामने परफॉर्म अच्छा करते हैं, उसके पीछे लॉट ऑफ रिहर्सल है। एक गायक भी अगर बहुत अच्छा रिहर्सल करता है तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो आप भी एग्जामिनेशन में, मेरी सभी को एडवाइस है, प्रैक्टिकल जिस दिन देना है एक दिन पहले हर काम का, स्पॉटिंग का, वाइवा का रिहर्सल करिए। हमें ध्यान है हम लोग अपने समय में बैठ के ग्रुप में एक दूसरे से सवाल पूछते थे। तो जिस कार्य को करना है यदि आप एक दफे रिहर्सल करेंगे वो कार्य अच्छा होगा। तो मेरी अपना मानना है कि कम्युनिकेशन का बच्चों के अंदर बोलने की कला, लिखने की कला आनी चाहिए, और हर बच्चे को इतना तो आना चाहिए कैसे एक एप्लीकेशन लिखी जाए किसी भी तरह की, और कैसे एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो ये एक लिखना और बोलना धीमे धीमे आता है। मैं भी चूंकि मिक्स्ड उससे अपब्रिंगिंग हुई है, तो मैं यही बोलूंगा, ये इंग्लिश नहीं आती तो जोर होगा, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। One has to aspire to improve the ability both by writing and by speaking. दोनों प्रोनाउंसिएशन, ओरल एंड रिटन इंप्रूव करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जो भी काम करें। लास्ट है इसका, हम लोग अपने यहाँ साइंस में चाहे फिजिक्स की लैब हो, जोलॉजी की लैब हो, कंप्यूटर की लैब हो, डिसेक्शन हो, हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं, और ये प्रैक्टिकल कराने से मास्टर होती है। और एग्जाम में भी जो अच्छा करते हैं, जो प्रैक्टिकल करके जाते हैं। आइए इसके लिए आई, तीसरी बात हमने आपसे कम्युनिकेशन, रिहर्सल बोली। आई मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, अर्थात अपने स्वयं को वॉच करना। आप देखिए क्लास में अक्सर आप जाते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे की चर्चा करते हैं, क्लास में लड़कियां हो या लड़के हो, दूसरे के निगेटिव कमेंट्स, दूसरे के नुक्ते निकालना ये जबरदस्त आदत बन गई लोगों की, कि निगेटिव चीज की लिस्ट बनाना। जरूरत इस बात की है हर बच्चा बाहर से एक अच्छी चीज सीखे और अपने को देखे कि हमारे अंदर वो अच्छाई है कि नहीं। तो ये इंट्रोस्पेक्शन समझाने के लिए, हम एटीट्यूड समझाने के लिए आपसे एक सहारा लेते हैं आइसबर्ग का, कि कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। तो आइसबर्ग फिनोमिना, आइसबर्ग टाइटैनिक पिक्चर में देखा होगा, 10% दिखता है, 90% अंदर होता है। ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है, उसका बिहेवियर है, उसकी जो ओवरऑल पर्सोना है, जब तक आप बाहर निकलेंगे, अपने को बोलेंगे नहीं, अपने को पेश नहीं करेंगे लिख के, बोल के, व्यवहार के द्वारा, तब तक आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं हो। देयर इज ए नीड दैट वी शुड थिंक पॉजिटिव, वी शुड एनहांस अवर पॉजिटिव एटीट्यूड सो एज टू एक्सेल एंड डेवलप ए गुड पर्सोना। और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बोला जाता है कि एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड आदमी की एक सोच है जो निगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। ये डायग्राम दिखा रहा है, कोई कह सकता है आधा पानी से भरा है, कोई कहेगा आधा हवा से भरा है, फिर कोई मोदी जी कहते हैं आधा हवा आधा पानी से भरा है। ये कहलाती है पॉजिटिव सोच। So मेरा अपना मत है, positive thinking not only extend and expand positive attitude, but it also induces positive thoughts which turn into positive words and action. और जब हमारे विचार, हमारे वर्ड, हमारे एक्शन पॉजिटिव होंगे तो ऑब्वियसली आगे व्यवहार और डेस्टिनी भी पॉजिटिव होगी। That will, so अगर नट एंड शेल में कहें, attitude decides one's altitude. So positive thinking is very essential to be successful in the life. एटीट्यूड बच्चों से पॉजिटिव रखना चाहिए, बड़ी बड़ी समस्याएं निकल जाती हैं, ये बहुत जरूरी है। और इसी एटीट्यूड के ऊपर बात है, पॉजिटिव थॉट इज द की ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इज टू चेंज अवर एटीट्यूड।
हमेशा खुलापन रखना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, अपने व्यवहार को, एटीट्यूड को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, तब सीखेंगे। और बाहर ही नहीं खोजें, एक्सप्लोर, इम्प्लोर हम कहते हैं, एक्सप्लोर आउटसाइड बट ऑल्सो इनसाइड, जिसको हम इम्प्लोर कहते हैं। आत्मचिंतन भी देखना चाहिए कि आज के दिन हमने क्या एक सीखा। यदि ये जज्बा हो जाएगा तो 365 दिनों में कई चीजें सीखी जा सकती हैं। ये बच्चों के लिए मेरा संदेश है। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यू फाइंड वेरियस पर्सन। मैंने शिव खेरा की किताब में बच्चों को बोलता था पढ़ना चाहिए। इट्स अ वंडरफुल बुक that infuses the confidence and motivation among the students. So positive attitude is a magnet of positive result, which is essential for the life. And मेरा अपना मत है, जो व्यक्ति का माइंड है, मस्तिष्क है, ये थॉट फैक्ट्री है एंड हम उसके मैनेजर है। वी आर द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ आवर थॉट फैक्ट्री एंड वी कैन जनरेट पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स। और रिसर्च कहती है करीब प्रतिदिन मनुष्य की 50,000 विचार आते हैं, जिसमें से 50% नेगेटिव है। सो माइंड इज ए बैंक, वी शुड डिपॉजिट गुड आइडियाज, पॉजिटिव थॉट्स एंड प्रेजेंट एक्सप्रेशन। दैट्स वेरी एसेंशियल। एंड मैं अपनी बात का अंत करूंगा एक स्लाइड ये इससे, उसके बाद फिर मैं समापन करके, if we change our thinking, if we change our attitude, we can change our belief, behavior, expectation and performance and obviously our life also. So मेरा बच्चों को, ये सभी को संदेश है कि अपने अंदर ये एटीट्यूड लाएं कि आप अच्छा डेवलप करें। और ये मैं अपना बात को अंत करता हूं कि डोंट मियरली गो थ्रू दी बुक्स एंड लाइफ। किताबों और जिंदगी में केवल इसके साथ जाना नहीं है, बट वन शुड लर्न टू ग्रो विद बुक्स एंड लाइफ। उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। ये मेरा आप सबको मैसेज है बच्चों। एंड डिस्कवर योरसेल्फ, बी योर ओन मास्टर। अक्सर कहते नहीं, गट फीलिंग। यदि आप सोचेंगे, जो आपकी गट फीलिंग करेगी, अच्छा होगा। आज 4 गलती होती है, कल 3 होंगी, 1 होगी, 2 होगी। तो अपनी आत्मचिंतन, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें and get born, grow up, discover the world and discover ourselves. My good wishes to all of you. Thank you very much. वर्मा जी, आपने अवसर दिया, मैं बच्चों से बात कर सका, बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से हो गई बात। अब आप बच्चे जो पूछना चाहे, इंटरेक्ट करना चाहे, कर सकते हैं। यस वर्मा जी, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, संकोच पूछिए बेटा। हाँ, बात कर सकते हैं बच्चे। सर बडिंग के बारे में जानना था। बडिंग डिस्क्रिप्शन में एक फिनोमिना दिया गया है। देखो, ये मान के चलो पार्थेनोजेनेसिस के अलावा व्हेनेवर स्मॉल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस गोज इनटू ब्रोकन पार्ट, तो वो उस पार्ट को निकल के जाता है, तो हम बडिंग कहते हैं। अमीबा के बारे में कहते हैं कि यदि न्यूक्लियस का पार्ट गया, दूसरे को जन्म दे देगा। अब डिस्क्रिप्शन में बुक में दिया गया, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वन शुड नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंजुगेशन, सिंगेमी और बाइनरी एंड अदर फ्यूजन। बट डिस्क्रिप्शन बुक्स में है। इसी तरह न्यूट्रिशन का आप देखिए तो न्यूट्रिशन में तरह तरह के फिनोमिने दिए गए, लेकिन मेन है आजकल जो हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर के द्वारा देख रहे हैं, वो उनको जानना और उनको समझने का प्रयास करना। और बेटा बोलो, न्यूक्लियस का क्या रोल होता है? न्यूक्लियस का पार्ट ऑफ न्यूक्लियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। व्हेन द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस गो, सपोज करो एक अमीबा है, किसी तरह से यदि वो छोटा सा न्यूक्लियस का हिस्सा उसमें बाहर गया। अब मैंने इंडिजिनस, एक्सोजिनस बडिंग, मोनोटोमिक बडिंग में क्या हुआ, न्यूक्लियस का थोड़ा सा हिस्सा टूट के बाहर गया और उसने बाहर एक साइटोप्लाज्म हो गया, वो आगे चल के जन्म देगा नए को। चूंकि बाहर की तरफ एक बड जैसा हिस्सा निकला, इसको हम बडिंग बोलते हैं। सो बडिंग इज द डेवलपमेंट ऑफ swollen part, but condition is this part of nucleus must go, and budding can be internal, external, single or multiple. Anything else? Thank you. और कोई? आप बोले। सर बोलो बेटा। बोलो बेटा। सर सिंग गाने के बारे में बता दीजिए। सर ने बताया तो। इसके बारे में बच्चे
सर थोड़ा सा नोट मैं नहीं कर पाई हूँ सर, डेटा प्रॉब्लम। क्या चीज? सिंगेमी सर, इस बारे में बता दीजिए। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ऑटोगेमी, सिंगेमी सर, ये सिंगेमी। देखो बेटा, एक बात सुनो ध्यान से बच्चों, साइंस बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ये सोशल साइंसेस का नहीं है कि आंख के अंधे नाम नैन सुन, अमीरे लाल पैसा है नहीं, करोड़ी बल और कटोरा लिए बैठे हुए हैं। तो साइंस ऐसा नहीं है। साइंस में जितनी टर्मिनोलॉजी है बच्चों, अगर थोड़ा डिक्शनरी लेके देखो, हर वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। यूग्लिना, यू मीन्स ट्रू, ग्लीन मीन्स आईबॉल, ट्रू eyeball like structure as the name of the animal is euglena. Protozoa, protos means first, zoon means animal, automixis, auto means self, mixis मिलना, तो पोरीफेरा, porus, feron means to bear. So ऐसे एनिमल जितने और होते हो, तो आप जितनी चीज का आप लोग, सिंगेमी क्या आते हैं, सिन means complete, fusion. So whenever male and female gamete, that means ऐसा gamete जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म था, वो जब कंप्लीट फ्यूज कर जाता है उसको सिंगेमी कहते हैं। इसलिए दिया गया है चूंकि कॉन्जुगेशन में कंप्लीट फ्यूजन नहीं होता है, ओनली देयर इज एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस, दैट टू मेल। मेल इधर से उधर माइग्रेट करता है, फीमेल वहीं रहता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं होता है, एक्स कॉन्जुगेट होता है। तो टू डिफरेंशिएट विद मेन कॉन्जुगेशन प्रोसेस द टर्म हैज बीन नेम्ड सिंगेमी। इज इट क्लियर? यस सर। और कोई बेस्ट विशेष का एक और मैसेज कहेंगे, दोज हु आर वाइज दे डोंट रिवाइज ट्वाइस, दे रिवाइज थ्राइस। जब मौका मिले हर बात को पढ़ने के बाद, एक दफे लिखने के बाद आंसर, यदि समय है तो रिवाइज करना चाहिए और ये आदत डालनी चाहिए। हाँ पूछे सवाल यदि कोई है तो। सर ये हमारे बच्चे जो हैं इसमें एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के हैं, क्योंकि इनको इस बात की लिबर्टी है कि ये चाहे रोज कॉलेज आए चाहे ना आए, शासन की ऐसी व्यवस्था है। और ये जहां पर ये रहते हैं, हमारा कॉलेज इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दूर है, और ये मुझे मालूम है सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत इंटीरियर में होते हैं। वर्मा जी आप क्या आएंगे, आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, कितना भी वो हो मैं आऊंगा एक दफे आपके कॉलेज। और ये यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं ज्यादातर से वह बच्चे होते हैं जो ज्यादा फीस नहीं दे पाते, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस कम लगती है, स्कॉलरशिप जरूर मिलती है, तो इसलिए बच्चे आते हैं। और जब ये हमने ऑनलाइन के व्यवस्था के बारे में अपने प्राचार्य जी से बात किया, तो बच्चों के सामने समस्या ये आई कि हमारे कम से कम 10-12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास या जिनके परिवार में एंड्रॉयड फोन है नहीं। हाँ। तो ये दिक्कत समझ में आई। मैं तारीफ करूंगा कि आप ऐसे क्षेत्र में, इंटीरियर जगह पे, जहां पे बच्चों को इतनी कम सुविधाएं, आपने इस मोड को सक्सेसफुली किया है। हमारी आपको पूर्ण सहयोग, पुनः बधाई, और कॉलेज के प्रिंसिपल को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा। और इट वाज ए एक्सपीरियंस ऑलवेज वर्किंग विद यू, क्योंकि आप तो एक महीने बैठते नहीं है, जनवरी के बाद फरवरी आए कुछ ना कुछ मिलन और सम्मेलन दोनों करते हैं। और बच्चों को हमारी बहुत शुभकामनाएं। बच्चों में चाहिए अपना कॉन्फिडेंस, चाहे ग्रामीण परिवेश से, कभी भी मन में हीन भावना नहीं लानी चाहिए। हिंदी आती है तो क्या है, मेन चीज है कि अपनी अभिव्यक्ति सशक्त रखें, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो डॉक्टर ब्रजेश जी हैं क्या इसमें? तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका सर डाटा कम होता होगा, वो 1.5 घंटा वो उनका डाटा ही नहीं चलता होगा। तो अरे बाप रे, तो इन आपने सारी रिकॉर्ड किया हो, हाँ, शेयर करिएगा। हाँ, तो इन सारी विषम परिस्थितियों में भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस एक तरह से 10 दिवसीय जो ये हम लोग पावन कार्य कर रहे हैं उसमें वो सहभागी हुए। मूलतः ये कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए है, तो बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम में जुड़े रहने का साहस किए सर। और आपके लिए सर हमारे पास वास्तव में कोई शब्द नहीं है कि हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद व्यक्त करूं सर। बस हम इतना ही कहेंगे कि ये हम इस बात के लिए भाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोग हमारे जीवन में आए, और जब भी हमने आपको स्मरण किया आपने हमेशा पूरा सहयोग दिया। तो ये जंतु विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद प्रयागराज आपकी
आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता है और ये उम्मीद करता है कि जब भी हम लोगों को ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो आप हम लोगों के लिए सुलभ रहेंगे। सर, सुविधाओं में कार्य करना एक सामान्य बात है, लेकिन सुविधाओं के ना होते हुए सर हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में कोई चपरासी नहीं है, कोई लैब असिस्टेंट नहीं है, और इसके बावजूद हम लोग इतना काम खुद करना पड़ता है। आप लोग को परीक्षा, पढ़ाई, ऑफिस रिपोर्ट, मुझे मालूम है गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या स्थिति है। तो लेकिन वर्मा जी आप वन काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा एक का फुल सपोर्ट है। शुभकामनाओं। और बच्चों के लिए एक मैसेज के साथ हम ये बात समाप्त करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सर आपका बहुत बहुत आभार। और हमने भी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा तो बहुत था, लेकिन हमारा भी कुछ ज्ञान वर्धन हुआ सर, इसलिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और कल प्रिय विद्यार्थियों, कल 10 दिवसीय लेक्चर का तीसरा दिन होगा और ये जो टॉपिक है ओजोन डिप्लीशंस, समिट्स टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस एंड एनवायरमेंटल लॉज, इनके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर नाजिया रसूल लतीफ़ी, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर की। उनका लेक्चर होगा। सर अभी अपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में बीएचयू के वाइस चांसलर बने हैं सर। अच्छा, हाँ भी नाम मैंने सुना था। वो क्या नाम है? प्रोफेसर अरे बेचन जी सर, डॉक्टर बेचन लाल। हाँ जी सर। हाँ मैंने त्रिगुण की फेसबुक पे बधाई दे दी थी। अच्छा, और मधु जी के तो क्लास फेलो हैं। अच्छा सर, अच्छा। तो सर आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने इतना कीमती समय निकाला। वस्तुतः हमारे पास शब्दों की इस मामले में कमी है कि शब्दों में आभार व्यक्त करें सभी बच्चों को, और आपका एक बार पुनः आभार। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you beta, thank you everyone, thank you so much sir, thank you sir, thank you sir, God bless all of you. Thank you sir.